فائنینس سسٹم ہمارا بڑا آرگنائزڈ ہے. پوری دنیا میں ہم نے جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں مسجدیں بنا کر اسلام کی خدمت کرنے کے لیے. تو یہ بھی جو ہے نا یہ خود ساختہ ایک بنائی ہوئی دلیل ہے، حالانکہ ایسی کوئی دین کی شریعت جو ہے یار یا بھگوان شرعی بھائی لحاظ سے. سوری ایک منٹ دیجیے گا، پھر وہ ایک مسئلہ سا ہو گیا یار بھائی. نیچے سے کوئی رپورٹ نہ کرے، ادھر اوپر کون سا کچھ ایسا ہو رہا ہے، خدا دا نام لے لو. حال تو براڈ لائی ہے تو سر رپورٹیں شروع کرتی ہیں کریں آپ اچھا انہوں نے مجھے مخاطب کیا ہے تو میں رسپانس دے دیتا ہوں. السلام علیکم. میں بات فنش کر لوں پھر آپ کیجیے گا پلیز. ان کی بات کا جواب میں مجھے دینے دو. جی جی کوئی بھی دے، مجھے اس سے مسئلہ نہیں، لیکن بات اگر کمپلیٹ کرنے دیں. جوش نہ دکھائیں. اچھا بات ادھر تھی کہ یہ اس کو بھی ایز اے کاؤنٹ کرنا کہ سکسیس سٹوری کہ ہم نے پوری دنیا میں مسجدیں بنائی ہیں، ہمارا فائنینشل سسٹم جو ہے وہ بڑا تگڑا ہے، بڑا سٹرونگ ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی کوئی خود ساختہ بنائی ہوئی سکسیس ہے جو کہ اصل میں سکسیس سٹوری بنتی نہیں. اور اگر اسی کے مد مقابل دیکھا جائے تو جو جن نے مرزا صاحب کے تقریباً دور میں ہی دعویٰ نبوت کیا تھا، بلکہ فزیکلی جن احادیث کو مرزا صاحب نے تمثیلی رنگ میں بھگوان صاحب یہ جو بات آپ کریں ایک تھوڑی چھوٹی بات کریں تاکہ آپ ساتھ ساتھ باتوں کا جواب لیتے جائیں. آپ نے تو میری بات میں 15 منٹ آپ کی 20 منٹ آپ کی بات سنوں گا. نہیں ہم نے کوئی بات نہیں کی، یہ سوال پوچھ رہے تھے. پہلے آپ نے آپ نے کہا ہم نے جواب دینا ہی نہیں. آپ نے کہا بھائی ایک منٹ سب ٹائم دی دوست خاموش. پوائنٹ آف ویو میرے بھائی مجھے رکھنے دینا. رانا صاحب نے کہا کہ ہم نے جواب نہیں دینا، ڈیبیٹ نہیں کرنی. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، میں اپنا رکھوں. ایک میری چھوٹی سی بات سن لیں. پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا میرے بھائی. بھگوان بھائی میری ایک چھوٹی سی بات سن لیں. ایک منٹ آپ چھوٹی سی بات سن لیں، پھر جو مرضی بات کیجیے گا بعد میں. لیکن مجھے اس براڈ پہ بڑا کم ٹائم ملے گا نا بھگوان بھائی. دوسرے آپ 1 گھنٹہ لے لیجیے گا، میری ایک بات سن لیں، بس ایک بات سن کے پھر جو مرضی جواب دیجیے گا. انہوں نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا تھا، میں نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی، آپ نے اس کے مقابلے میں بہت پتہ نہیں گلوریفائی کر دیا. میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میں کسی اور کو کہوں کہ تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا. میں کہتا ہوں آپ نے کیا کیا، آپ کی پلیٹ میں ہے کیا مقابلے میں پیش کرنے کے لیے. آپ نے کتنے مشن ہاؤسز بنائے، آپ نے کتنے قرآن پاک کے تراجم کیے. آپ ہماری طرح کا ایک جلسہ تو دکھا دیں، آپ وہ دکھائیں نا، آپ پیش کریں. ہاں جی ہم نے یہ کیا، یہ کریں نا. آپ بجائے دوسروں پہ تنقید کرنے کی بجائے کہ آپ نے تو یہ غلط کر دیا. غلط میں تنقید نہیں کر رہا میرے بھائی، میں تنقید نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کو توسیع کہہ لیں، تنقید نہ کہیں. کہ اگر وہاں بھوک سے ہوئے آپ نے کتنے مسلمان کیے اسی بھوک سے، یہ بتائیں. ہاں میں ابھی وہی بات کرنے لگا ہوں نا میرے بھائی کہ جس کو آپ تنقید کہہ رہے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا. اگر آپ اس کو تنقیدی رنگ میں لے رہے ہیں تو میرا آپ سے کوسچن ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ نے کیا کیا ہے، بس یہ بتا دیں. جیسے آپ کون سی گروپ سے ہیں اور آپ کی جو آپ نے تو کہا تھا مقابلہ چل نہیں رہا، میں ادھر کسی کو قائل نہیں کرنے آیا. آپ کا اپنا پوائنٹ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میرا بھی مجھے پوائنٹ آف ویو بھی نہیں رکھنے دے رہے. اتنا کیا خوف ہے کہ نہیں ایک منٹ رکے نا. آپ جو بندہ مسلمانوں کو اور ان کے جو پیغمبر ہے اس کو گالیاں نکالتا ہے ننگی، اور ادھر آ کے وہ جماعت احمدیہ کے چنگیز صاحب غلط بات نہ کریں. میں آپ کو نا قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں، قیامت تک کا. جس دن آپ نے یہ اپنا الزام میرے خلاف ثابت کر دیا کہ میں نے پیغمبر کو کسی نبی کو، ایون مرزا صاحب کو بھی میں نے گالی دی ہو، آپ ریکارڈنگ لے کے آئیں، میں آپ کا مجرم ہوں. صحیح ہے. بھگوان کی جو آئی ڈی ہے اس کے اوپر میری ایک ہی آئی ڈی ہے میرے بھائی، اس کا یوزر نیم اپنا یاد رکھ لیں. میری ایک ہی آئی ڈی ہے. میں آپ کو قیامت تک کا ٹائم دے دیا. جس دن لے کے آئیں گے بھائی جان میں آپ کا مجرم ہوں، جو سزا کہیں گے مجھے قبول ہے. یہاں تک صرف کسی پیغمبر کو نہیں، یہاں تک کہ جن کو میں پیغمبر بھی نہیں سمجھتا. سارا میری بات سنیں بھگوان صاحب، آپ اپنا عقیدہ بتا دیں، آپ کس عقیدے کو مانتے ہیں. میرے بھائی میں ادھر ڈیبیٹ کرنے ہی نہیں آیا، آپ کو پتہ نہیں کیا ڈیبیٹ. میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے آیا ہوں جماعت کے بارے میں نہیں رکھ سکتا. تقریر کرنے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف. ہاں بالکل تقریر کرنے آیا ہوں. چنگیز صاحب ایک میں رک جائیں، آپ بھی اپنا ٹائم لیں. ڈیبیٹ میں آپ سے ڈیبیٹ کروں گا چنگیز خان صاحب، کوئی خدا خوفی کریں. آپ سے ڈیبیٹ بنتی نہیں میری کرنی. آپ ویسے مجھے تنگ کر رہے ہیں تو وہ
चलें कर लें आप। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, राणा साहब ने आते साथ कहा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। सो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। मैंने जवाब भूखे दिया, नंगे अफ्रीकन है, उनको रोटी कपड़ा दे के आप जिधर दिल लगा दो, उनको क्या लगे? ये सक्सेस स्टोरी नहीं है। फिर आप कह रहे हैं तर्जमा हमने किया है जी 70 जुबानों में 80 जुबानों में तर्जमा किया है, कोई और करके दिखाए। ये चैट जीपीटी में आप डालें, जोन सी भी चीज डालें, आपको तर्जमा कर देगी। कौन सा बड़ा मार का मारा इसमें आपने? ये आपने इस्लाम की खिदमत की है, क्या खिदमत की है इसमें आपने? जिसकी आप बात करें, इसको कितना अरसा हुआ है? तो यही बात मैंने कितना अच्छे अरसा हुआ अल्फाज में करनी थी, सुन लेना, यही बात मेरी मैंने बात अच्छे सुनिए, अल्फाज ये में करनी थी, चैट किसी जीपीटी को की तकलीफ बात दिए करें, बगैर कब आई करनी है? थी। आपने मुझे मजबूर किया कि अब मैं इस भगवान अंदाज में साहब, करूं कि आपकी दो है ना वो पीड़े उठे। ना जैसे तो ना मर्जी किया आप करें एक बंदे को आपको मजबूर, जो इजाजत है। अच्छे, आपको वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे एक मर्जी बंदे करें। को ना कोई मजबूर भीड़ किया नहीं। करें कि वो कोई उधर भीड़ उधर से नहीं। आपको फिर छेड़े, जिधर से आपको तकलीफ वलीद हो। साहब, आप तो तो ना छेड़ा आप- करें। मेरा टाई रॉड जहाँ से खुल मर्जी जाता है, छेड़ो। ये तो घर से टाई सो रॉड छुड़वा बात के करने दिया करें, एक बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, वो फिर आपने कोशिश की कि मुझे पे गाली का इल्जाम लगाएं, जी नबियों को गाली देता है। इस तरह की बातें ना किया करें। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, आप उससे इख्तलाफ करते यार हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू भी तो कर दें और खत्म भी करें। तो यार बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप रखने नहीं दे रहे ना, आप देख नहीं रहे, वो बार बार टोक रहे हैं। बीच में बार बार टोक देते हैं, मैं फिर क्या करूं? वो राणा राशिद साहब से बात यार करना चाह सवाल रहे ही नहीं हैं। खत्म हो रहा था आपका, तो पता नहीं कहां से शुरू हुआ था। वो राणा साहब से करने देना अच्छा, बात। एक और पॉइंट इसमें मैं रख दूं, इन्होंने एक 5 और पॉइंट रख दूं, फिर चंगेज खान साहब को मौका दें, वो अपने 15 मिनट तकरीर कर लें। ठीक है जी। ये जो लेकिन आप इनने relax ये होके इस करें, चीज, relax होके। हाँ जी, इस चीज को भी इनने सक्सेस स्टोरी अपने जो बार बार ये रखते हैं कि हमने जी जगह जगह पे मसाजिद बना दी, जगह जगह दुनिया के कोने कोने पे हमने मसाजिद बना दी। ये भी असल में इनकी सक्सेस स्टोरी नहीं बनती, खुद साख्ता बनाई हुई है। अगर मस्जिदों की ही रेस लगानी है, मस्जिदों की रेस में तो इनसे ज्यादा दावत इस्लामी वाले जीत जाएंगे। अगर चंदे की रेस लगानी है कि कौन जमात को या कौन अपने फिरके को ज्यादा चंदा देता है, तो इनसे ज्यादा चंदा तो दावत इस्लामी वाले ले रहे हैं। तो फिर तो सारों को उनके साथ शामिल हो जाना चाहिए। अगर ये सच्चाई की दलील है या ये हक की दलील है, तो ये खुद साख्ता बनाई हुई स्टोरीज को जो ज्यादा आप ग्लोरीफाई करके अकॉर्डिंग टू राणा साहब पेश करते हैं, इनसे हट के मुझे लगता है कोई ऑन द ग्राउंड काम जो है ना, जिसमें वाकई प्रोग्रेस और नस्लों तक फायदा दे, वो बेहतर रहेगा अगर कोई कर दे जमात। तो अभी तक मेरी नजर में जमात ने ऐसा कोई काम नहीं किया, बहुत माजरत के साथ। और बाकी जिन भाइयों की दिल आजारी हुई है, मैं माजरत करता हूं, मैं म्यूट हूं, आप बात करें। इसमें तो कोई डिबेट वाली बात नहीं। अगर आपकी ठीक है राय ये है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारी अपनी राय है, आपकी अपनी राय। इसमें तो ना हम आपको साबित कर सकते हैं। उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा था, मैंने उसका जवाब दे दिया, बात खत्म। अब इसको क्या, ठीक है आपकी राय है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आप पे इल्जाम लगाऊं, आप में तअस्सुब है, ये है, इसमें तो कोई हमें क्या मिलेगा? क्या हम इसको साबित करेंगे? राणा साहब, ये भगवान साहब मुसलमान है? वो जो भी हुआ वाटर भाई, हमें इससे क्या लेना देना है? नहीं, वैसे नाम इनका भगवान है, तो ये अपनी मंदिरों की काउंटिंग करें, इनको क्या मस्जिदों से? हाँ, मैंने तो नहीं कहा कि आप अपना बताएं कि आपने क्या किया, आपकी प्लेट में क्या है, दूसरों की प्लेट ना गिने। ये अमर नजीर साहब आए हैं, आपके मेहमान, इनसे बात करें आप अपना वलीद भाई। मैंने तो ये भगवान साहब को इतना ही कहना था कि सबसे पहले बात करने से पहले अपने बंदा गिरेबान में झांके कि आपकी क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है इस वक्त, के आप क्या कर रहे हो, आप किस जगह पे खड़े हो। या तो आप अपना बताओ कि हाँ भाई ये हमारा लोगो है, ये हमारा एजेंडा है, इस एजेंडे पे हम चल रहे हैं, और ये भगवान आपको जगह जगह पे मिलेंगे, और ये भगवान जो मैंने अपना नाम रखा है, इस लोगों के ऊपर आपको इंसाफ मिलेगा, ये हमारा इंसाफ चल रहा है, इस जगह पे हमारा इंसाफ की नहरें बह रही हैं। सिर्फ यहाँ बैठ के 4 बंदों के अंदर तनकीद करनी कि तुम्हारे पास क्या है, ओ भाई तुम्हारे अपने पास क्या है? तुम तो मुझे लगता है मुसलमान भी नहीं हो। वलीद भाई इस बात का जवाब देने दीजिएगा जब ये बात खत्म करें प्लीज। दें जवाब। हाँ देखिए, मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहमत बन के आया हूँ। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है कि अल्लाह मुझे ख्वाबों में मिलता है, मेरे पे इल्हाम करता है और मुझे बताता है कि मैंने लोगों को जो है वो जन्नत की तरफ लेके जाना है। मेरे तो इस तरह के दावे ही नहीं है कि मैंने लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ना है। मैं दुनिया में आया इसलिए हूं कि मैं हर बंदे को पकड़ पकड़ के अल्लाह के साथ जोड़ूं। ये दावा जात आपकी है मेरा भाई, ये दावा जात आपके अकाबरीन की है। म्यूट करें तो सुन लेना, बात सुन ले। अब ना करे ना ऐसे, ना करे ना ऐसे। बात सुन लेना यार। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या है ना तो मैं प्यार नाल किया है कि जिस तरीके ना मैं गल करना, मुसलमान के सवाल का जवाब दो। चिड़ोगे तो फिर उत्थे तकलीफ होगी, फिर ना कीता करो।
हमें हिंदू मत का पता नहीं भाई, सॉरी। ओ भाईजान ठीक है, आपको नहीं हिंदू मत का हमें पता नहीं ना, पता कि जनाब तो आपके दावा मंदिर जात तो कहाँ पे आपकी हैं। हैं। सो हमें क्या ये पता? ज्यादती आपकी, दोबारा आप ज्यादती कर रहे हैं कि एक आम बंदा जो तस्लीम कर रहा है कि मैं एक आम बंदा हूँ, यार आप उसका आम बंदे नहीं, कंपैरिजन आप आपका कर रहे हैं मजहब मिर्जा फर्क है। मसरूर मैं साहब के रिस्पेक्ट साथ जो करता हूँ अल्लाह के हिंदुओं चुने की। हुए हैं, मैं जिनने हिंदुओं की पूरी रिस्पेक्ट दुनिया की करता सलाह हूँ, करनी बाकी बात नहीं, आप है, उसका हमारे कंपैरिजन आप मुझसे कर रहे हैं मिर्जा गुलाम इनको अहमद बात कर लेने दीजिए। मिर्जा गुलाम अहमद अगर हम अफगानियान रोकेंगे के तो साथ, उल्टा ही हमारे खिलाफ जाएंगे। जिनने एक एक शख्स की जिम्मेदारी उठाई है कि मैंने उसको अल्लाह के साथ जोड़ने देखिए, मैं आपके भगवान के तो खिलाफ ये नहीं बोल ज्यादती रहा, ना कहीं ना आपके करें, मर्जी मुझे से आम क्या बंदे खुदा की के तरह खिलाफ ना आप बोले। अपना मुकाबला मेरे साथ करें ना कि आपने दुनिया में क्या किया और मैंने दुनिया में क्या किया। जी भगवान साहब, आपके तो जमात 5 पूरी का राफेल मुकाबला जहाज मेरे साथ कर रहे हैं और फिर उस जमात का मुकाबला कर रहे हैं कि जिसका हेड ऑफिस जो है, जो मिर्जा मसरूर साहब है, वो लंदन में बैठे हैं और वो क्लेम ये कर रहे थे, जो खुद स्टैटिस्टिक्स से भगवान साहब, पीछे है, एक मिनट रुकिए, कि भगवान साहब हमने बात करें। इंग्लैंड में अब सबसे ब्रेक ज्यादा भी लगाएं। मसाजिद बनाई। भाईजान हालांकि ब्रेक उस भी तो फिरके ने, लगाओ। सुन लेना, ब्रेक भी तो यार उस यार फिरके ब्रेक ने यार एक जमातियत मिनट सबसे एक ज्यादा बात मसाजिद बनाई है, जिसको पूरी मैंने उम्मत मुसलमान काफिर समझती है। सॉरी यार, मुझे हिंदू मत के बाउद्दीन बारे में पता नहीं का था। फिरका, मैं आपको वाटर भाई स्टैटिस्टिक्स से एक बात मिनट कर रहा हूँ। वाटर भाई एक मिनट, मैंने छोटी सी बात की दो तीन लफ्जों में और इनको माइक दे और दिया। आपने मुझे और ये पूरी नहीं तकरीर शुरू करने कर दी, देते हैं। आपने मुझे और ये पूरी नहीं तकरीर शुरू करने कर दी। देते हैं। जब भी इनको मौका मैं देते वही हैं, तो कह रहा हूँ, आपने मुझे पूरी नहीं करने दी। ये जब तो मैं बात बोलने नहीं लगता हूँ आपकी तकलीफ उठती है, आपको मजबूर करती है कि आप बीच में टोकें। मेरी बात तो सुनो। रिलैक्स होके कर नबी लेना करीम सारे, हजरत पता नहीं मोहम्मद की कर देते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हमारे लिए कोई नहीं है। जब वो झूठ बोलते हो आप, ये आपका दावा, आपका जो दावा है सिर्फ लोगों को बताने के लिए। उनको करने में बात करो। मैं एक आपको मिनट से साबित कर यार सकता हूँ, वलीद, आप मैं आपके एक मिनट, अकाउंट कोई से एक साबित कर आदमी होने सकता का हूँ, ये दावा आपका करते हैं झूठ और है। हिंदुओं में हम पर हमला भगवान एक मिनट रुको। मैं आपकी किताबों से साबित कर सकता हूँ, ये आपका दावा झूठा है। भगवान एक मिनट सब्र कर। तो इधर ना जाएं जिधर आमिर भाई सबर सबर कर करो। आमिर भाई सबर ते मेरी कर भी ले। सुन दे। आमिर भाई मौजूद हो? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत बेशुमार, जिसका ये दावा हो कि नऊज़ु बिल्लाह हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नऊज़ु बिल्लाह रुतबा बढ़ाओ। लानत उसके पैदा करने वाली अच्छा, पे। ला इला- एक अच्छा, सेकंड और सब्र कर ले मोहम्मद भगवान है। रसूलुल्लाह और मुंह- मा एक मिनट, अशद्दहुल मुंह जुबान कुफार पा, वाली मुंह आयत जुबान में पा, मुंह जुबान पा, एक मोहम्मद मिनट, से मेरी कौन है, गल कौन है, मुकी ये भी साथ साथ बता और दें। मेरी गल मुकी, मुंह च जुबान पा ले, मैं गल कर रहे हैं। यार ये ये तो रसूल आप अपनी दफा भी हिंदुओं के कायम रखना। सवालों को क्यों जवाब दे रहे हैं? ड्रेस ही मत करें। ये बीच में टोकने ना टोकने वाला असूल अपनी दफा तो भी यार कायम रखना। दफा करो, मैं म्यूट करता बंदा हूँ। है तेरे नाल गल गैर करना। मुस्लिम बंदे की हम बात का क्या जवाब दें? हमें हिंदू मत के बारे में नहीं पता। हिंदू मत के बारे में तो आपको नहीं वाटर पता साहब, ना, इस लेकिन बंदे आपको से ये तो बहस पता का है कि फायदा नहीं है। मोहम्मद रसूल अल्लाह इस बंदे का इतना दीन ईमान तो है कोई नहीं है। वाली में, उसमें आपको पता है मोहम्मद से कौन मिसदाक है, ये तो इस पता है ना बंदे से आपको। कौन आप बहस करेंगे? भाई मैं हिंदुओं से बात नहीं करता, आप इस्लाम भाई, के बारे में छोड़ो जानते ही नहीं भाई कुछ। भाई आप हिंदुओं से बहस नहीं करते। मिर्जा साहब तो कह रहे हैं कि मैं खुद हिंदू का जो है वो क्रिश्चियन लौटने वाला हूँ। आप कह रहे हैं मैं हिंदू से तो बात बस नहीं आप करता। मान मिर्जा लें साहब उनको कह रहे हैं क्रिश्चियन। मैं और समझा समझ रहा हूँ लेना। जी, आप बात सुन करें। तो इस बात लेना। को रिस्क इंसान से। हकीकत वाटर तो साहब वही है, चले मिर्जा जाइए यहाँ साहब से, कह फिर रहे हैं खामोश हो जाएगा कि बात से। हिंदुओं को मेरी ये किताब 2 बार पढ़नी चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। आप कह रहे हैं मैं हिंदू से बात नहीं करता। तो मैं मिर्जा ऐसा साहब करो तो कि दावत हाथ हकीकत लेके वही का पहुंचे मुझे हुए हैं। हिंदी वर्जन दिखाओ पहले, मिर्जा ताकि साहब मुझे तो पता दावत हाथ लगे। लेके पहुंचे हुए हैं हिंदुओं के पास। आप कह रहे हैं मैं हिंदुओं से बात नहीं करता। नहीं आप करता अपने ना काफिर यार। को तो पढ़े जाके। मिर्जा साहब भाई कह रहे हैं मुझे- मेरा मैं इसलिए नहीं मेरा बात है करता ही कि नहीं। मैं हिंदुओं से मेरी नफरत जमात का करता मेंबर हूं। ही नहीं जो मेरी किताबें ना पढ़े 3 दफा। मैं तो इसलिए मैं आप हिंदुओं जैसे से शख्स बहस से नहीं क्या करता डिबेट करूं। क्योंकि मैंने आपके इसीलिए मजहब कहा का ज्यादा पता है नहीं मेरा है। मौकिफ था, मैंने पेश करना था आपको। बार बार बीच में मुश्किल हुई, अब आपको तकलीफ हो रही है जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। आपका कोई तो ना मौकफ था छेड़ा ही नहीं करो। यार। जैसे आपके 3 करोड़ भगवान नहीं, होते पिंडा हैं जितनी पीड़ नहीं सहंदा उतना ना किसी नु कीता करो। यार, मुझे कोई पीड़ नहीं हो रही। मैं आपके अब मजहब के फिर बारे में गल ज्यादा जानता नहीं। तो जानो ना। मिर्जा साहब दावत हक पेश कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं जानता नहीं। तो यार आप आप अपने जानो काबिर ना। के बारे में भी नहीं हमने जानते। तो मुसलमानों वाला हिस्सा समझना है, तो हम आप क्यों अपने समझे काबिर हिंदुओं के बारे वाला? में भी नहीं जानते। आपके आपको क्या काबिर जो बताओ? है वो कह रहे हैं कि 2 बार जो है हिंदू ये किताब पढ़े मेरी और फिर फैसला करें कि मैं सच्चा हूं कि झूठा हूं। आप 2 दफा पढ़ आए हैं जी जी, मैं 2 दफा पढ़ आया हूं। आप कुछ झूठे हैं वो। तो हिंदू कैसे सच्चे हैं? हिंदू जैसे भी सच्चे हैं। आपने पढ़ी है हमारी किताब, वेद पढ़े हैं आपने? यार हम तो ये देखते हैं कि तो आपके जब भगवान आपने ही वेद इतने पढ़े ज्यादा नहीं, हैं। फिर आप मुझे झूठा क्यों कह रहे हैं? इस्लाम मैंने में तो तो उनकी वो तसव्वुर किताब ही 2 एक बार खुदा पढ़ी का है। मैं तभी लेकिन कह रहा हूं मैं उन्होंने आपको झूठा दावा किया है। तबलीग आपने कर पढ़े रहा हैं हूँ, वेद? आप एक खुदा की इबादत किया करें। मेरे भाई, मैं एक खुदा की इबादत करता हूँ। हिंदू लिटरेचर में से एक जगह साबित कर दें कि एक से ज्यादा खुदा को हम पूजते हैं, चलें।
मैं आपके लिए यार बना चैलेंज के तो आप हर मंदिर में नए अल्लामिया रखे होते हैं आपने हाँ, पत्थर ये के आपकी काम अकली है ना, जिस तरह आपने एक मिर्जा साहब को इब्राहिम भी बनाया, मूसा भी बनाया, दाऊद भी बनाया, मरियम भी बनाया, ईसा भी बनाया, तो वो तो मैं भी अच्छा। कह सकता हूँ एक नबी रखे, आपने 70 नबी बनाए हुए हैं। यार तो 1,24,000 में कोई बात भी नबी की हैं, जा तो हम सकती क्यों है। ना 1,24,000 नबियों को माने। और वाटर भाई, आप में इतना पानी नहीं जाए यार, सर ना खाएं प्लीज। यार आप तो वैसे ही सूखे पत्थर के बने होते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस रहने दे, हम क्या पत्थरों की पूजा करने वालों से बात करें। यार मेरी बात सुने ना, अबू बकर साहब, आप माशाल्लाह मुसलमानों के चैंपियन हैं। आप मुसलमानों के चैंपियन हैं, आप इसको तबलीग करके मुझे भी सिखाएंगे कैसे करते हैं हिंदुओं को तबलीग। यार हम बात कर सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे हिंदू मत के बारे में पता नहीं, तो उनके जूते कपड़े वापस कर दें। आप वो इकट्ठे करने आ गए हैं, मैं क्यों बुलाऊं, दोस्त तो वो आपके हैं। तो आप मुझे ये इनको तबलीग करके दिखाएं। आने दो यार, बुला लो यार, फिर मियाँ 69 से ये भगवान को तबलीग करवा ले। निशान तो हो गया है। अबू बकर भाई, आप इन्हें तबलीग करके बताएं ताकि मैं भी सीखूं आपसे। अबू बकर भाई के बारे में, फेवरेट 49 के बारे में कोई बात नहीं। बाकी माजरत वलीद भाई, मैंने आपकी ब्रॉड का माहौल ख़राब किया यार, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था मेरा, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा था। जो वो बातें जिस तरह ग्लोरीफाई करके जमात की बता रहे थे, अगर एक जलसे की बात है तो यार इतने कॉन्सर्ट लगते हैं इंग्लैंड में। मैं श्योर हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सर्ट लगते होंगे। ये 50,000 बंदे की बात करते हैं, इतने इतने बंदे आते हैं कॉन्सर्ट पे, कोई हादसा कुछ नहीं होता, बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे होते हैं। इसमें कौन सी इस्लाम की कौन सी फतह है, या एक फ़िरके की क्या फतह है इसमें? क्या उनने लोगों के लिए, लोगों की मुश्किलात के लिए, उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनके लिए क्या किया? सो ये मेरा सवाल था जो उनको चुभ रहा है और वो बात ही नहीं करने दे रहे थे, तो उस वजह से थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ, जिसके लिए मैं दोबारा माजरत करता हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो भी। नहीं, माहौल यहाँ पे ऐसा ही होता है टिकटॉक पे, यहाँ पर कोई आयत करीमा का वजीफा नहीं होता। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि हमने इस्लाम की खिदमत की है, ये तर्जमे करके कुरान पाक के और वो पावर शो करके कि हमारे पास इतने बंदे हैं जलसे में, ये मैं सुन नहीं सका, मेरे आने से पहले शायद इन्होंने कहा। जी उनने कहा है कि जिस तरह फाइनेंशियल लेवल पे हम काम करते हैं कोई और फिरका या जमात नहीं करती। वो आमिर और में जिस मेरी तरह- बात हो रही थी, जी, वो जी। मेरी बात हो रही थी उधर राणा साहब से ना, राशिद राणा साहब से। वो भगवान साहब तो बाद में आए थे, तो मेरी बात हो रही थी राणा राशिद साहब से ना। तो वो मैं कल इनको सुन रहा था, ये किसी जगह पे कह रहे थे कि हमारी कनाडा में ना 50,000 तादाद है और मुसलमानों की 5 लाख है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये एक्चुअल तादाद आपने बताई थी या आपने वैसे ही? उन्होंने कहा नहीं, मैंने वैसे एक मतलब 1:10 का रेशो से एक मतलब ऐसे एक मिसाल दी थी। तो वो वहाँ से बात शुरू हुई, तो फिर वो कह रहे थे कि हमारा निज़ाम बड़ा अच्छा है, फाइनेंशियली हम बड़े स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो कह रहे थे कि यहाँ मुसलमानों ने कोई एक मस्जिद बनानी होती है ना, तो उस पर रेडियो पे ऐलान करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है मस्जिद बनाने में, लेकिन जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो वो मुनज़्ज़म है तो जल्दी बन जाती है। फिर मैंने उन्हें, मतलब वैसे तादाद की थोड़ी बहुत बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार यूके के जलसे में तो आपके 50,000 लोग हैं, लेकिन सुनने में आता है कि आप करोड़ों में हैं। तो वो यहाँ से बात चलती चलती उन्होंने फिर कहा कि वो अफ्रीका में हमारी सबसे ज़्यादा तादाद है ना। तो वो यही मतलब ये मतलब खुलासातन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बस। फिर उसके बाद फिर ये भगवान साहब ऊपर आ गए थे। तादाद तो खैर इन्होंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई कि इनकी कितनी है और कहाँ पर है, वो तो सारे गलत बयानी है। लेकिन इस्लाम की खिदमत इन्होंने की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा बढ़कर मिर्ज़ा साहब ने खिदमत की है इस्लाम की। उन्होंने जब लोगों ने ये, मैं एक बात आपको ज़ुबानी सुनाने लगा हूँ कि इन्होंने जब मिर्ज़ा साहब ने लोगों को गालियाँ दी, तो अहले इस्लाम ने कहा भाई गालियाँ ना दें,
تو انہوں نے کہا قرآن میں سارے میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں. جب ان کی پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں تو اہل اسلام نے کہا بھئی آپ کی تو ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں. انہوں نے کہا سارے نبیوں کی جھوٹی نکلی ہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کذب بیانی کرتے ہیں, باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کہا سارے نبی ایسے کرتے تھے. یہ بات جو میں نے بیان کی ہے یہ کرسچنوں کے ایک اخبار نور افشاں نے لکھ کر انہوں نے کہا, کرسچنوں نے کہا کہ مسلمان ان کا منہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ہر بات اپنے والی یہ نبیوں پر ڈال دی. میری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی بھی جھوٹی نکلی ہیں. میں گالیاں دیتا ہوں, قرآن سارا گالیوں سے بھرا ہوا ہے. میں جھوٹ بولتا ہوں, سارے نبی جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ. تو انہوں نے کہا, کرسچنوں نے کہا کہ اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے بڑے مجدد نے ساری باتیں وہ مان لی ہیں جو ہم منوانا چاہتے تھے ان سے. یہ بہت بڑی خدمت ہے اسلام کی. اس سے بڑھ کر اور خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ اب کوئی مسلمان کے سامنے یہ دلیل نہیں پیش کر سکتا کہ قرآن نے کوئی سخت زبان نہیں کسی کے خلاف استعمال کی, قرآن نے گالی نہیں دی. وہ کہیں گے بھائی آپ کا یہ مجدد ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نے گالیاں دی ہوئی ہیں. بہت بڑی خدمت کی مرزا صاحب نے, بہت بڑی خدمت کی. اسی خدمت کو یہ لے کر آگے چل رہے ہیں. بنیاد تو وہی ہے. اچھا باقی ولید بھائی میں اس لیے آیا تھا, میں تو خیر میرا کوئی آپ کا انٹریکشن ایز سچ نہیں ہے, شاید پہلی بار آپ کے براڈ پہ آیا ہوں, کہ میں کل بیٹھا تھا ایک براڈ پہ کیسر کے پاس, وہ احمدیہ دا ریلیجن آف پیس کے پاس. میں نے آپ سے بات کرنی تھی, میں نے کل آپ کی ساری بات سنتا رہا ہوں وہاں بیٹھ کے. جی جی, تو میں نے ادھر آپ کو دیکھا تھا. آپ کریں, بات کریں, سوری. نہیں آپ کریں, آپ کہہ رہے تھے نا, آپ نے مجھے ادھر دیکھا, میں بھی ادھر بیٹھا آپ کو سن رہا تھا, کافی دیر سنتا رہا ہوں. میرا ان سے انٹریکشن ہوا ہے ایک دو دفعہ. ابو بکر بھائی پلیز نہ کریں یار, ادھر نہ دھیان کریں نا جتنے بھی بولا. اوپر گیسٹ کی تعداد بھی کبھی 69 ہو جاتی, کبھی 67. یہ کون سی بات؟ بہرحال بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. مسلمان ان کی خدمت سے شرمندہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے خدمت کی ہے. وہاں پر کرسچنوں کے سامنے گئے تھے مناظرہ کرنے, اور وہاں کہنے لگے کہ اگر تم کوئی اپنا نشان پیش نہیں کر سکتے تو مجھ سے نشان مانگ لو, میں نشان پیش کرتا ہوں. انہوں نے نشان پیش کرنے کے لیے کہا کہ ہم تو نہیں پیش کر سکتے, آپ کر دیں. یہ 3 بندے ہیں ہینڈیکیپ, ان کو صحیح کر دیں. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا. تو ایک تو وہاں خدمت کی, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر 15 مہینے میں یہ کرسچن پادری جو میرے سامنے ہے یہ نہ مرا تو میں بھی جھوٹا, میرا سارا دین بھی جھوٹا. سارا کچھ اپنا وہاں پر داؤ پر لگا کر سب کچھ جھوٹا قرار دلوا کر آئے تھے. معاذ اللہ, کیا لے کر آئے تھے وہاں سے کرسچنوں سے. عامر بھائی اگر 15 آپ وہ مہینے سوری بات کمپلیٹ کر لیں, میں نے صرف بتانا تھا. میں نے کہا یہ اوپر نا محمد حسین صاحب کی آئی ڈی بھی آئی ہے, پتہ نہیں شاید آپ دیکھ رہے ہیں موبائل یا نہیں, میں نے کہا اس لیے بتا میں ڈرائیو کر رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھا, میں ڈرائیو کر رہا ہوں. ہاں جی, یہ محمد حسین صاحب آپ کو پتہ لگ گیا نا, محمد حسین صاحب کو. ہاں جی, وہاں پر بھی انہوں نے اسلام کا بڑا نام بلند کیا اور اسلام کی بڑی خدمت کی کرسچنوں کے سامنے. اسی طرح سے ہندوؤں کے سامنے بیکرم کے معاملے میں اور دیگر ان کے بھگوانوں کو گالیاں دینے کے معاملے میں انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. اتنی خدمت کی ہے کہ اگر آریہ دھرم کتاب پڑھیں نا, مرزا صاحب کی کتاب کا نام ہے آریہ دھرم, پتہ لگ جاتا ہے کیا خدمت کی ہے. ان کی ہو کر وہ راول نے کتاب لکھی تھی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, ایک گندی گالیوں والی کتاب. پھر ان کی خدمت کی ہی وجہ سے وہ
ایک مسلمان لڑکا اٹھا, اس نے جا کے اس کو چھرا مار دیا جذبات میں, ظاہر ہے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا. لیکن ان کی ایمانی غیرت یہ کہتے ہیں کہ جس نے ان کے خلیفہ پر بات کرنے والے کو قتل کیا اس نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا. ہم کہتے ہیں نہیں, اس نے غیرت کا مظاہرہ کیا جس نے راجپال کو قتل کیا. یہ کہتے ہیں نہیں, جس نے ہمارے خلیفہ پر بولنے والے کو چھرا مارا اس نے اسلام کی خدمت کی, ہمارے مذہب کی خدمت کی. بہرحال وہ ہندوؤں کے معاملے میں بھی انہوں نے بڑی اسلام کی خدمت کی, کرسچنوں کے معاملے میں بھی انہوں نے بڑی اسلام کی خدمت کی. تو خدمت تو ان کی جو ہے اس کا تو جھنڈا بادشاہ آسمان پر پہنچا ہوا ہے. پاور شو کرنا, وہ ایک پنجابی کی مثل ہمارے پنجاب میں گجرات میں بولتے تھے کہ گھوڑی دا پوچھا لمبا ہوئے گا تو اپنا ہی پیچھا کجے گی نا, اپنا ہی پیچھا کجے گی. اگر لمبا پوچھل ہوگا گھوڑی کا, اگر آپ جلسہ کر کے اس میں 10,000 20,000 50,000 بندہ بھی اکٹھا کر لیں, اس کو کہتے ہیں پاور شو آف. اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو مذہب کی تو یہ خدمت کی ہے کہ جس کسر صلیب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کرسچنوں کی صلیب کو توڑ دیا ہے. کسر صلیب کا معنی ہے صلیب کو توڑ دینا. جس صلیب کو توڑ دینے کا دعویٰ ہے اسی صلیب والوں کے ملک میں سال ہر سال سے پناہ گزین ہے اور وہیں پر زندگی گزر رہی ہے بس ان کی. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے کسر صلیب کر دیا. معذرت, میں بند کر دیتا ہوں, مجھے نہیں, محمد حسین صاحب سے ایک, اچھا میں دیکھتا ہوں, میں نے نہیں دیکھا. میں کہہ رہا ہوں محمد حسین صاحب سے صرف ایک سوال کا جواب لے لیں کہ محمد حسین صاحب اب ہم کرسچنوں کو کیا جواب دیں جب کرسچنوں نے یہ کہا کہ ہم تو کہتے تھے قرآن میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں, ہم تو کہتے تھے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسا ایسا بولا ہے, اب تو آپ کا مجدد مان رہا ہے. اس نے خود کہا ہے کہ اگر میری پیش گوئیاں جھوٹی ہیں سارے نبیوں کی جھوٹی ہیں, اگر میں گالیاں دیتا ہوں سارا قرآن ہی گالیوں سے بھرا ہوا ہے. کہتے ہیں اب ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کے گھر سے گواہی آ گئی. بتائیں گے کہ ہم ان کو کیا جواب دیں کرسچنوں کو؟ یہ کرسچنز کہہ رہے ہیں. ہاں جی, کرسچن کہہ رہے ہیں. کرسچن تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں, میں نے ان کرسچن کی بات کا کیسے جواب دینا ہے؟ یہ بجنا صاحب نے تو ان نہیں کی کہا. جواب اجازت دیں تو میں میں نے جواب یہ دوں. نہیں کہا. ہاں یہ بھائی میں نے اچھا یہ نہیں جواب دیں گے کہا. واٹر بھائی. ہاں جی, مجھے اجازت ہے جی, میں آپ کا جواب دے سکتا ہوں. جی جی بھائی جان, آپ کو بڑے آپ کو بتاتے ہیں, کیا اس کو کہہ سکتے ہیں, بڑے پراؤڈ طریقے سے بتاتے ہیں کہ جی میں 20 سال سے اٹلی میں ہوں. تو ذرا آپ بتا دیں کہ جناب آپ نے اٹلی آ کے اسلام کی کیا خدمت کی ہے, یا آپ کے ساتھیوں نے, یا آپ جہاں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یا جس جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ لوگوں نے کیا خدمت کی ہے, کتنے مسلمان کر دیے آپ نے؟ تو آدھا سے زیادہ اٹلی میرا خیال ہے کر لیا ہوئے گا مسلمان. پھر جناب آپ بتا دیں کہ آپ نے کون کون سی کتابیں لکھ ڈالی اس دوران جس سے عیسائی امپریس ہو گئے. حقیقت میں آپ نے جا کے آپ, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عیسائیوں کے ملک میں آئے ہی کیوں؟ آپ کسی مسلمانوں کے ملک میں کیوں نہیں گئے؟ آپ کو تو اسلام سے اس قدر محبت ہے, تو یہاں آنے کا مقصد لازماً آپ کا تبلیغ ہی ہوگا, کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں. تو آپ نے اسلام کو عیسائیوں میں شاید اس طرح انٹروڈیوس کرایا ہے کہ یار دیکھو تمہارے حضرت عیسیٰ جو اللہ کے بیٹے ہیں آسمان پر مانتے ہو نا تم انہیں, اللہ میاں کے دائیں ہاتھ پہ, ہم بھی وہی مانتے ہیں. تم یہ مانتے ہو نا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے, ہم بھی وہی مانتے ہیں. اور تم یہ مانتے ہو کہ وہ مٹی سے پرندے بنا کے ان میں پھونک مارتے تھے اور وہ اڑنے لگ جاتے تھے, ہم بھی یہی مانتے ہیں. تو یار ہم تو بالکل تمہاری طرح ہیں. اور یہ مرزائی تو بہت برے لوگ ہیں, یہ تو تمہارے حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں. تو یار ہم تمہاری صحیح خدمت کرنے یہاں پہ آئے ہیں, تم ان کو یہاں سے نکال دو قادیانیوں کو, یہ تو تمہارے مذہب کے خلاف ہیں, تو تباہی پھیلا رہے ہیں. اصل تبلیغ تو ہم کر رہے ہیں, دیکھو ہم بالکل تمہارے جیسے ہیں, ایون ہماری تو شادیاں بھی تم لوگوں میں ہوئی ہوئی ہیں. لو جی بتائیں اب آپ اپنی خدمت گنوائیں ذرا. بہت اللہ, بہت اللہ. لو جی, اب جو جواب دیا ہے واٹر صاحب نے, امید ہے کہ اب کوئی کرسچن اگر میرے سامنے آئے گا نا
और वो मुझसे सवाल करेगा कि भाई बताओ, तुम तो मानते नहीं थे, तुम्हारे मुजद्दिद ने मान लिया है, ये मुसलमानों में से एक बंदा था तो उसने खुद माना है कि सारे कुरान में गालियाँ लिखी हुई हैं, तो अब हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब वो अब क्रिश्चियन मुझसे सवाल करेंगे तो मैं ये जवाब दे लूँगा जो वाटर साहब ने दिया, बहुत माकूल जवाब दिया, ऐसा माकूल जवाब दिया है। अब ये जवाब जब मैं दूंगा तो उम्मीद है कि कोई क्रिश्चियन मेरे सामने वो मुँह नहीं खोलेगा। बाकी रही बात ये कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, तो मैं उनको असल में यहाँ इटली आया ही इसलिए हूँ कि मैं उनको सही अकीदे की तबलीग करूँ जो मिर्ज़ा साहब देकर गए हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो आप मानते हैं कि आसमान पर उठा लिए गए हैं, वो सही अकीदा नहीं है, बल्कि 10 महीने के हमल के ज़रिए से इस्तिआरे के रंग में हमल ठहरा के बंदे को पहले मरियम बनाया जाता है, फिर उससे मरियम से इब्ने मरियम बनता है। आप जिस इब्ने मरियम के इंतज़ार में हो कि वो आसमानों से कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे, आप गलती पर हो। देखो हमारे हिंदुस्तान में एक बंदा था, उसको इस्तिआरे के रंग में हामला ठहराया गया जो हमल 10 महीने से ज़्यादा का नहीं था, तो फिर वो पहले मरियम बने, फिर उनके अंदर वो रूह नफ़क की गई, तो फिर वो इब्ने मरियम बने। ईसा की रूह जब उनमें नफ़क की गई तो ऐसे ईसा इब्ने मरियम बनकर दुनिया में तैयार होकर आया है। इसको मानो, उनको छोड़ो जो आसमान पर आप मानते हो कि आसमान पर उठाए गए हैं, क़यामत से पहले वो नाजिल होंगे, उनको छोड़ो। और दूसरी बात रही उनके मौजज़ात की, तो उनके मौजज़ात के बारे में ये भी मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो आप अकीदा मानते हो ना कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को हाथ लगाया तो ज़िंदा हो गए, और वो अंधे को हाथ लगाया तो उसकी आंखें सही हो गई, ये भी मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखो हमारे हिंदुस्तान में एक बंदा आया है, उसने ये बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम मिसमरिज़म किया करते थे, योगा की मशकें, हिप्नाटिज़म, टेलीपैथी जानते हैं ना, टेलीपैथी और हिप्नाटिज़म के ज़रिए से अपने आसाब की वर्जिश करके, अमलुत्तिरब उसका नया नाम है जो इल्हामी तौर पर उस बंदे को बताया गया है, वैसे वो मिसमरिज़म हिंदुस्तान में मशहूर था। तो मिसमरिज़म के ज़रिए, मैस्मरिज्म, अच्छा मिसमरिज़म है या मैस्मरिज़म है? नहीं, मैस्मरिज्म, आपकी जुबान में मैस्मरिज्म मैस्मरिज़म होगा, अंग्रेजी का लेकिन लफ्ज है ना वो, हाँ, अंग्रेजी का लफ्ज अंग्रेजी है, में, तो उर्दू में उन्होंने लिखा हुआ है जिसको आप वो पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ जी, मैस्मरिज्म। अंग्रेजी में उसकी प्रोनाउंसिएशन मैस्मरिज़म ही होगी, लेकिन उर्दू में हमने पढ़ा मिसमरिज़म। बहरहाल चलो, मैस्मरिज़म ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैं उनको बताना तो चाहता हूँ। डर लगता है कि अगर किसी गैरतमंद मसीही के सामने खड़े होकर मैंने ये कह दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम मैस्मरिज़म करके, योगा की मशकें करके, असाब की वर्जिश करके वो मौजज़े दिखाया करते थे, तो मुझे डर है कि कोई क्रिश्चियन, कोई होते ही है ना क्रैक, भी आम तौर पर तो मुल्हिद ही हैं ये सारे, लेकिन अगर कोई बिलीवर हो गया जोसेफ मसीह जैसा, तो मुझे छुरा ना मार दे ये कहने पर कि तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम मैस्मरिज़म करके वो मौजज़े दिखाते थे, वो जो मट्टी का परिंदा बनाते थे उसको फूंक मारते थे ना, तो वो उड़ता था, वो मैस्मरिज़म के ज़रिए से उड़ता था। मैं बताना तो चाहता हूँ उनको, लेकिन डर लग रहा है, छुरा ही ना खा लूँ कि रे आया तो तबलीग ही करने के लिए। मिर्ज़ा साहब की तबलीग मैं करना चाहता हूँ यहाँ। जी वाटर साहब जी, बहुत बहुत मेहरबानी। आप ऐसा करें कि आप अपनी तबलीग ही जारी रखें, ताकि आप क्रिश्चियनों को लगे कि आप भरपूर तरीके से उनसे मिलते हैं, बल्कि सिर्फ नाम ही फ़र्क है, काम सारे वही वाले हैं। तो इस तरह वो आपसे और खुश होंगे और इंशाल्लाह अगले साल आपको 2 ट्रक लेके देंगे। वाह भाई वाह। ऐसा मकूल जवाब देते हैं वाटर साहब की, ये बात रही है कि जवाब ऐसा मकूल देते हैं ना, अगले बंदे को लाजवाब करके रखते हैं। दलाइल से लाजवाब कर, मिर्ज़ा साहब की पेशगोई मैंने कई बार अपनी आंखों से पूरी जवाब होते देते हुए, हैं। मिर्ज़ा साहब की ये पेशगोई मैंने कई बार अपनी आंखों से पूरी होते हुए देखी है, जो उन्होंने फरमाया था ना कि मेरे फ़िरके के लोग दलाइल और सच्चाई के नूर से और निशानों की रूह से मुखालफों का मुंह बंद कर देंगे। ये मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, और तो कोई मिर्ज़ा साहब की पेशगोई पहने पूरी होती नहीं, देखिए ये पक्की पूरी होती। देखिए अभी मेरा उन्होंने मुंह बंद कर दिया, ऐसे दलाइल दिए और ऐसा निशान पेश किया, मेरा तो मुंह ही बंद कर दिया। मुझे तो अब समझ नहीं आ रही
کہ میں واٹر صاحب کو کیا جواب دوں. واٹر صاحب میں مرزا صاحب کی تبلیغ کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہوں, میری مدد کریں, میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. صحیح بات ہے, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام جو معجزے دکھاتے تھے میسمرزم کے ذریعے سے دکھاتے تھے معاذ اللہ, اور وہ جو ہاتھ لگاتے تھے کسی اندھے کو تو اگر اندھے کو دکھائی دیتا تھا تو یہ میسمرزم تھا. کسی کوڑی اچھا کو مرزا دکھا صاحب ہو نے تو جاتا. لکھا ہوا ہے کہ یہ مٹی کی جو چڑیاں تھیں ان کا اڑنا، جنبش کرنا، ہلنا یہ قرآن شریف سے ثابت ہے. تو بعد کا پہلے حوالہ کون سا ہے، بعد کا کون سا ہے، پہلے کا کون سا ہے، بعد کا کون سا ہے؟ ایک تو یہ ہے کون؟ نا کہ قطعی ثابت نہیں ہے. ابھی جو ہاں آپ بات کر رہے ہو، آپ تو وہ بات کر رہے ہو نا کہ یہ قطعی ثابت ہی نہیں ہے. ہاں جی. اور ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے نا کہ مٹی کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ان کا، ہاں جی انہوں نے لکھا ہے نا ان کا ہلنا، اڑنا، جنبش کرنا یہ قرآن شریف سے ثابت ہے. تو یہ آپ کو پتا ہے پہلے کون سا ہے، بعد کی کون سا ہے؟ اچھا وہ نہیں مجھے یاد, لو آ گیا جی تو ڈر پہ لگتا ہے نا, امتحان کرے ہو بندہ وہ نہ ہوئے میں نے چھری مار دے. میں ان کو یہ تبلیغ کرنا چاہتا تھا. یہ آگے ہیں واریر صاحب, واریر آف جیسس. اور آپ کی تو ہم نے کسر سلیب کروا دیا مرزا صاحب سے, آپ ابھی بھی واریر بن کے گھوم رہے ہیں. آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے مرزا صاحب نے فرمایا کہ وہ میسمرزم کر کے لوگوں کو معجزے دکھایا کرتے تھے. آپ کو خطرہ تو نہیں ہے کوئی کہ اب میں تو دور ہوں نا, تو مطلب ماریں گے تو نہیں نا دور سے مجھے کوئی چیز ہے؟ نہیں اگر قادیانی کو سامنے آ کے عامر بھائی یہ بات کرے گا تو چلے پھر ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کانڈ ہو جائے ہم سے بھی, کیونکہ سامنے جب ہوتے ہیں تو پھر بندہ جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا. یہ میری درخواست ہے کہ طاہر صاحب نیچے کو گالی گولی دیں تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے بلاک کر دیا جائے, کیونکہ پھر نا وہ کانسنٹریشن لیول جو دوسری طرف چلا جاتا ہے, بندہ ہائپر ہو جاتا ہے. میں کہہ رہا سا کہ واٹر صاحب نے تمہیں کہہ رہے سن کہ جی وہ تسی کرسچنا دا عقیدہ لے کے تے مسلمان ٹرے پھرتے ہیں. بھئی نہیں تمہیں برے عقیدے لگتے نے کہ مینوں واٹر صاحب یہ بتا دو, تسی دس دو کہ ایک مسیح نے آنا تھا. یہ عقیدہ تو سب سے پہلے یہودیوں نے متعارف کروایا ہے. تورا کے اندر ایک مسیح کے آنے کا ذکر پایا جاتا ہے. مشیاخ نام جو ہے وہ تو تورا سے شروع ہوتا ہے. آپ نے مسیح کا نام کہاں سے لیا ہے؟ مرزا صاحب کو آپ نے کون سا نام دیے؟ یہ نام سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا ہے؟ آپ یہ نہیں مانتے کہ مسیح یسوع صلیب کے اوپر لٹکائے گئے تھے 3 دن کے لٹکائے گئے اور پھر وہ ان کو قبر کے اندر بھی رکھا گیا؟ بھلے آپ یہ مانے کہ بے ہوشی کی حالت میں رکھا ہے. مانتے تو آپ بھی سارے یہی ہیں. مانتے ہیں, یہ مانتے ہیں اس ہاں, بات تو اتنے آپ لوگ مطلب اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے عقیدے اتنے برے ہیں, اور تسی ہے کی ہو بھئی مرضی ہے کی نے ساڑے سامنے عقیدے سارے تساں ساڑی کتاب تو لے نے. یہ چیز جس طریقے سے جناب ایلیا کی جگہ جناب یوحنا آ گئے, مرزا صاحب مسیح کی جگہ آ گئے, عقیدہ ساڑی کتاب تو لیا تساں. حضرت مسیح صلیب کے اوپر لٹکائے گئے, ان کو کیل ٹھوکے گئے, یہ عقیدہ آپ نے ہماری کتاب سے لیا. 3 دن ان کو قبر کے اندر رکھا گیا, وہاں مرم پٹی ہوتی رہی. مرم پٹی کا تو چلو آپ نے پنچر لگا لیا, لیکن 3 دن قبر میں رکھے گئے, وہ عقیدہ آپ نے ہماری کفارہ کتاب اور سے لیا. تسلیس تو نہیں نہ لیا آپ سے, کفارہ اور تسلیس تو آپ سے نہیں نہ لیا آپ نے. انہیں تسلیس بھی لے لیا, کفارہ بھی لے لیا, صلیب سے میں پیار کرتا ہوں وہ بھی سب کچھ لے لیا. مسیح یسوع خدا دے بیٹے نے, ادھر انہوں نے مرزا صاحب نو خدا دا پتر بنا دتا. سارے عقیدے تے انہوں نے لے نے, یہ تے انج بیان کرتے نے. ہورے ساڈے عقیدے کدی ساڈی کتاب کھول کے نہیں ویکھی, اسی تے انہاں دیاں کتاباں کھول کے ویکھیاں نے. مرزائیاں دی کتاباں دے وچ تے سوائے ٹٹی تے گوں دے علاوہ تے مرزا صاحب نے کوئی تیسری گل اگر لکھی ہے تے او اے لکھی ہے کہ بندے دے وچوں جڑی منی نکلدی ہے نہیں بس. سلیب نہیں سلیب سے کہاں مرزا صاحب, وہ تو سلیب سے تو نفرت کرتے تھے, کہاں سلیب سے پیار سلیب سے مرزا صاحب بہت پیار کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ بھی سلیب سے پیار کرتے تھے. سلیب تو توڑنے کے لیے آئے ہیں وہ. نہیں, حضرت عیسیٰ سلیب سے پیار کرتے تھے. مرزا صاحب بھی کرتے, دونوں جنے کرتے ہیں, دونوں جنے پیار کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ بھی سلیب نال پیار کرتے ہیں تے مرزا صاحب بھی سلیب نال پیار کرتے ہیں. نہیں مرزا صاحب تو وہ تو کہتے ہیں میں کسرے سلیب کے لیے آیا ہوں. انہاں نوں پوچھ لو, جے مرزا صاحب سلیب نال پیار نہیں کرتے تے میرے نال شرط لا لین تے اس تو بعد تساں کسرے سلیب کیتی ہے کہ سلیب نال محبت کر دیو واٹر صاحب؟ کسرے سلیب جی, کسرے سلیب, وہ تو کسرے سلیب کی بات کر. نہیں مرزا صاحب سلیب سے پیار کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ بھی سلیب سے پیار کرتے ہیں. اگر پیار کرتے ہیں تو پھر گلے میں لٹکا لیں سلیب ایک ایک. نہیں پیار کرتے میں نہیں مانتا کہ مرزا صاحب پیار کرتے ہوں گے. واٹر صاحب کرتے ہیں پیار مرزا صاحب سلیب سے؟
मिर्जा साहब सलीब से जिसको तोड़ ही दिया, बस उससे प्यार क्या करना, वो फिर इनको वापस कर देते हैं, ये उसका बेड शेड बनवा लें। ये कहते हैं हमारे पास सबूत है कि वो मिर्जा साहब सलीब से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। अगर यार मिर्जा साहब ने ऐसी कोई बात कही है तो हमें बता दें। मैंने थोड़ा तो सा कोई- तफसीली जवाब है हाँ, इसका, तफसीली हल्का जवाब। सा तफसीली जवाब है। वो ये है कि जब 1947 में पाकिस्तान बन रहा था ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलहदा हो रहे थे, तो कभी हिंदुओं का जुलूस जा रहा होता था, लेके रहेंगे आज़ादी, कभी सिखों का जुलूस जा रहा होता था, लेके रहेंगे आज़ादी, कभी मुसलमानों का जुलूस जा रहा होता था, लेके रहेंगे आज़ादी। तो जोसेफ पट्टी और इसके दादा अबू जो थे ना, उनके भाई वहाँ पे खड़े हुए जो थे ना, पार्क की सफाई कर रहे थे, तो उन्होंने दूसरे पूछा, वे बशीर ए की कहंदे पए ने? उन्हें कहा, यार ए साडे कोलों आज़ादी मंगदे पए ने। तो बस वही हाल है जोसेफ मसीह साहब का। ये क्या जवाब आपने, मैंने तो पूछा था सलीब के बारे में कि मिर्जा साहब सलीब से ਆਮਰ नफरत ਭਾਈ करते थे कि प्यार करते थे। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਇਹਨੇ। मतलब वो यही कह रहे ना कि मसीही जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर वो करते हैं, सफाइयों का काम करते हैं बेचारे। ये ध्यान दिलाया, आप लोगों की हुकूमत थी 1947 से पहले पाकिस्तान में। कोई बात नहीं, नहीं मुझे पता है मसीही जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा ये काम करते हैं, उसको छोड़ें। मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि आपके मरज़ई जो है ना, ये जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर क्रिसमस नाइट के जो पार्टियां होती हैं या न्यू ईयर नाइट के बाद सफाइयां करते हैं, गंदे कंडम भी उठाते हैं। आप ना करें ये बात। वकार अमल है ना, ये इनका बातें तो वकार आप अमल है। देखें, सुन ले, मैंने आपकी बात सुनी है। आप लोग भी कचरा यहाँ पे 1 यूरो पर आवर के ऊपर आप उठाते हैं, सोशल आर्बिट करते हैं, आप लोग क्यों नहीं करते? घर घर जाके तुसी लोग कचरा चुकते हो, सफाइयां पे करते हो थे 1 यूरो ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲੀਬ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ? भाईजान, जब हमने ईसाइयों के भगवान को ही मार दिया, उसको मुर्दा साबित कर दिया हुआ है हर लिहाज से, कैसे कैसे उसके साबित बाद किया? सलीब कैसे रह गई? कौन सी सलीब और मतलब कैसी साबित सलीब? कैसे, कोई कैसे हमने साबित तो किया? कसरे सलीब जो कर दी है वो तो बस क़यामत तक के लिए है। मेरी बात सुनना, साबित करना और दावा करना दोनों अलग बातें। हम बात ये कर रहे हैं, अगर आपने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो इनका सलीब का अकीदा है और आपका ये दावा कि मैं कसरे सलीब के लिए, अगर मैं कसरे सलीब ना कर सका, ईसा परस्ती के बुत को ना तोड़ सका, तो मैं झूठा हूँ। ये जो दावा है, अगर आप ये सबूत दे दें कि आप वाक़तन आपने सलीब को तोड़ा है, सलीब से प्यार नहीं किया, तो मैं आपके हक़ में राय दे दूंगा। मेरी नज़र में तो आप दोनों बराबर ही हैं। वो अपना मज़हब रखते हैं, आप अपना मज़हब रखते हैं, हम तो सुनने वाले हैं। आप बताएं कि क्या मिर्ज़ा साहब ने कसरे सलीब किया है कि सलीब से प्यार किया? वो बार बार कह रहे हैं कि वो कसरे सलीब नहीं करके गए, प्यार करके गए। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मैंने तो जो अपना मौक़िफ़ देना था दे दिया है। हमने तो ईसाइयों के खुदा को फौत यानी वफ़ात याफ्ता साबित कर दिया। अब जब इनका खुदा ही अगर ये बातें करेगा तो माहौल खराब होगा, इनको रोक लें। तो वाटर फिर साहब किस तरह, कौन सी सलीब और कैसी सलीब और कैसी मतलब कि अब मसीहत इस तरह की खत्म हो लैंग्वेज गया ना, वो मज़हब। इस तरह की लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें जो वो बार बार कह रहे हैं, फिर झगड़ा होगा। फिर कि एक मौका आमिर भाई दे देना, फिर उसके बाद एक मौका समझा देने कि ना करें अब इस तरह के की बात अल्फाज जिससे ना माहौल इस्तेमाल खराब हो जाए ना। नहीं, अच्छे पहले लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो ये तो शुरू से ही आके ये कर रहे हैं कि जी वो सफाई करते हैं, वो फलान करते हैं, ऐसी स्लीप पान देती है, ये नहीं करते हैं। भाई, मैंने कहा था कि वो नहीं, कह रहे नहीं, थे कि हमसे आज़ादी मांग रहे हैं। नहीं, आज़ादी के अंदर आप ये तो सफाइयों की बातें कर रहे हैं। एक कोई करन वाली गल है कि जी जोसेफ मसीह ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਪਾਸੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਦਾ, ਤੇ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ? ਵਾਕਈ मैं बिल्कुल मैं ਮਿਰਜ਼ਾ सबूत ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ कोई ਮੈਂ कोई नहीं। हाँ जी, सलीब ਨਾਲ मैं ਪਿਆਰ करना? मैं अभी सबूत देता हूँ जी, अभी सबूत देता हूँ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰ
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਸਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ जोसेफ ਨਹੀਂ साहब ਫਿਰ एक ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। अगर यार ना मिर्जा ऐसा साहब जुल्म ने करी तो बहुत बड़ा पहलवान। नहीं जोसेफ भाई आप भी ऐसे, जोसेफ भाई आपने भी ना करें अच्छा ऐसी मेरी बात। तरफ नहीं, ये आपने बात नहीं करनी वलीद भाई, बदला बराबर ये हो गया आपने बात नहीं करनी, ये उन्होंने कहना है कि आप ऐसी बात ना करें, ये आपने मैंने नहीं बस बात दोनों करनी। का बराबर हो सुना। गया, नहीं, बराबर सुने। हो गया, उन्ना कर दो बार हाँ नहीं, ओके ओके ना कि भाई ऐसी बात ना करें, मैं ये करना- वो कहेगा, वाटर करेगा अल्लाह वलीद के भाई। बंदे मैं कर चुका हुआ हूँ और आप सुन ही नहीं ਸਾਹਿਬ रहे। ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਦੇ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਕਿਰੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਤਰੋੜਾ ਫਿਰ ਕਿਰੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਤਰੋੜਾ ਕਿਰੇ ਖਿਲਰਨਾ, ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮਿਰ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੜ ਨਾ ਪਵੋ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ एक मिनट नहीं एक मिनट रुक जाओ, पता ही है। आ गया जी। अब पढ़ो जी, तरियाकुल कुलूब पढ़ो। ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। बात दरअसल ये है कि बात यहाँ से बात शुरू बाद हुई में कर थी। लेते हैं, बात बाद में कर लेंगे, हवाला पढ़ लें पहले। एक मिनट होल्ड करो ना यार, मैंने ही बात जवाब दे बाद में दिया। करेंगे, हवाला पढ़ लें पहले। हवाला भी पढ़ मैं लेना। एक मिनट मैं पढ़ देता हूँ। रूहानी खजाइन है, ये जिल्द 15 है, सफ़ा 499 है, तरियाकुल कुलूब है। अच्छा जो हाईलाइटेड है वो ये लिखा हुआ है, पहले से ही पढ़ देते हैं। कश्मीर, ओ यार क्या हो गया, ब्लर हो गई। नहीं ठीक नजर आ रही है, मैं पढ़ देता हूँ जी। वो असल में आप 498 से पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मसाया के बारे में है कि मसीह सलीब से प्यार करते थे। आगे मिर्ज़ा साहब ने अपनी बात की है, सो उन्होंने ये मिर्ज़ा मसाया की बात कर रहे हैं, सो उन्होंने सलीब सच्चाई के लिए सलीब से प्यार किया है, इसी तरह उस पर चढ़ गए और एक बहादुर सवार खुश अनान घोड़े पर चढ़ता है। सो ऐसा ही मैं भी मखलूक की भलाई के लिए सलीब से प्यार करता हूँ। मिर्ज़ा साहब सलीब ना प्यार पे करते फिर देने थे। वाटर साहब ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, भाई है ही, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। और यार ऐसी मखलूक की भलाई के लिए तो अमर साहब भी सलीब से प्यार करते हैं। देखें 20 साल से इटली में बैठे हुए हैं, इस्लाम भी नहीं फैला ਮੈਂ ਤੇ रहे। ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਅਕੀਦਾ है। नहीं मिर्जा साहब सलीब से प्यार मिर्जा साहब करते हैं, अलबत्ता हवाला सलीब आमिर भाई वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। देखें आपने हवाला मांगा था, मिर्जा साहब सलीब से प्यार करते हैं, मैंने हवाला दे दिया है, बस तो सही हवाला मंगया सी ओ वाटर साहब हाँ जी। मिर्जा साहब सलीब ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਸਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ? और जनाबे अली हवाला तो चेक करें। ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ सारे का ਡਰਾਈਵ ਕਰ सारा ਰਿਹਾ, हवाला ਹਵਾਲਾ ही ਪੜ੍ਹ गलत ਕੇ हो ਸੁਣਾ गया। ਰਹੇ ਨੇ, हवाला तो- ਹਵਾਲਾ पढ़ के। ये तो हवाला आपके हक में ज्यादा जा रहा है कि आप मखलूक की खिदमत के लिए इटली चले गए, एक क्रिश्चियन मखलूक मुल्क की में, खिदमत के लिए मैं मखलूक से प्यार करने के लिए मैं भी सलीब से प्यार करना शुरू कर दूं? और क्या आपने सलीब से प्यार कर छोड़ा है? अपने 20 साल गुजार दिए। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ वाटर ਆਂਦੇ सन मैं कसरत वाटर एक मिनट रुकना, वाटर एक मिनट रुकना। आमिर जी साहब क्या मतलब है इसका? वैसे ये आप पढ़ के जरा आप बताएं ना, इस स्लीप का क्या मतलब है, आपको कितनी समझ आई है इसकी? मुझे ये कौन सी नहीं स्लीप है? ड्राइव करते हुए ना मैं सफा देख सकता हूँ ना पढ़ सकता हूँ, मैं आप सुन पहले रहा पढ़ हूँ। ले, एवं सुनी सुनाई बात के ऊपर ना बहस करना। ये स्लीप कौन सी है, इसका क्या मतलब है और किस माने में है, ये आप पढ़ लें, उसके बाद आप इतराज करें। अच्छा सलीब कुछ किस लिखो। रंग में लिखा है? सलीब का मैंने मैंने वो नहीं इस है यहाँ रंग पे। में लिखा है। रुक जाओ जी, मैंने आमिर कहा भाई ये कि पूछ आप रहे हैं, पढ़ मैं लें, दस देना और ये ये सलीब हो गए। आमिर नजीर साहब करें तो फिर वो आमिर उसका भाई। जवाब जो है वो दिया जा सकता है। आमिर भाई ये वही सलीब है जिसके ऊपर मसाया चढ़े हैं। मिर्जा साहब ने बयान तो किया है कि सलीब मखलूक की भलाई के लिए सलीब के ऊपर चढ़ गए। जैसे एक घोड़सवार जो है वो खुश अनान घोड़सवार जो है वो घोड़े के ऊपर चढ़ता है, ऐसे मसीह भी सलीब की भलाई के लिए सलीब के ऊपर चढ़ गए। ये पढ़ के सुनाओ जरा वारियर आमिर साहब, भाई, वो कौन सी आमिर स्लीप की भाई। बात कर रहे हैं और ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा इसको। आमिर भाई 2 लाइनें ये साहब ने तो लिखी 16 हुई हैं। साल वो पढ़ी मैं हैं, पढ़- पढ़ाई हैं 16 साल। आमिर नजीर साहब का तो ये कहना है कि 16 जमाता पढ़ियां तो 16 जमाता पढ़ाइयां। ये मोहम्मद मैं अली पढ़ साहब देता पढ़ के दसो आमिर नजीर साहब ने। मैं पढ़ देता हूँ लफ्ज ब लफ्ज पढ़ देता मैं हूँ। नहीं देख सकता यार, है बड़ा मसला, सारा प्रोग्राम ही मैं बढ़ आमिर कर भाई- गया सारा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਸਰਤ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆਏ ਸੀ।
अच्छा ये सुने आमिर भाई, ਇਹ ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚੁਮੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਲੀਬ। अच्छा यहाँ ना मेरे ख्याल में ये जो शुरू हो रही है ना बात, ये हो रही है सो उन्होंने, तो उन्हों से मेरे ख्याल में मुराद है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ जी मसीह की बात हो रही है। हाँ जी, सो उन्होंने सच्चाई के लिए सलीब से प्यार किया, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सच्चाई के लिए सलीब से प्यार किया और इस तरह उस पर चढ़ गए कि मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह उस पर चढ़ गए जैसा कि एक बहादुर सवार खुश अनार घोड़े पर चढ़ता है, समझ गए ना, जैसा एक बहादुर चढ़ता है घोड़े पर। सो ऐसा ही मैं, अब ये मिर्जा साहब अपना कह रहे हैं, सो ऐसा ही मैं भी मखलूक की भलाई के लिए सलीब से प्यार करता हूँ। ये है। हाँ, अब बात ये है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब से प्यार किया और सलीब पर चढ़ गए, सारा मजमून वाज़ेह है। इस पे इसमें क्या है, मतलब कि उन्होंने वो कबूल की तकलीफें और सलीब लगना कबूल किया, उन्होंने कहा हाँ जी भाई मैं चढ़ गया सलीब पे। ये अच्छा मजमून है। वलीद भाई और यही थोड़ा वो सा आगे बताना बढ़ चाह रहे दें हैं कि वो चढ़ गए थे सारी- स्लीप पे या नहीं चढ़े थे, साथ ही मुझे लगता है कंट्राडिक्ट भी कर गए अपनी बात को। अच्छा अगर पढ़ता और हूँ। मैं यकीन रखता हूँ और कि जिस मैं तरह यकीन खुदा रखता ताला हूँ- ने जी पढ़ो मैं पढ़ देता हूँ। और मैं, अच्छा वो कहते हैं ऐसा ही मैं मखलूक की भलाई के लिए सलीब से प्यार करता हूँ और मैं यकीन रखता हूँ कि जिस तरह खुदा ताला के फजल और करम ने हजरत मसीह को सलीब से बचा लिया और उनकी तमाम रात की दुआ जो बाग में की गई थी कबूल करके उनको सलीब और सलीब के नतीजों से निजात दी है। सलीब और सलीब के नतीजों से क्या काम खराब हो गया। ये इधर कंट्राडिक्ट कर गए साथ में बहुत पढ़ो सही। नहीं एक सेकंड रुक जाओ, कुछ नहीं कंट्राडिक्ट। सलीब, अच्छा ये सलीब मिर्जा और का मौका सलीब ये के भगवान नतीजों साहब, से ये एक मौका है मिनट, उनका। अच्छा सलीब और सलीब के नतीजों से निजात दी, ऐसा ही मुझे भी बचाएगा और हजरत मसीह सलीब से निजात पाकर आगे पता नहीं क्या है, मतलब किसी हाँ, जमीन की ठीक तरफ है, आगे आए मजमून और फिर सारा। अफगानिस्तान के मुल्क से सारे होते जमीन हुए आ वो गई। नुमान कोहे पहुंचे। नुमान सारी में जमीन पहुंचे समझ आ गई। जगह तो शहजादा बताओ नबी इसमें का इसमें इसमें क्या समझ लगी है जरा। कौन है अपना वारिद साहब तो लेके आए हैं, मोहम्मद वली साहब आप और आमिर नजीर साहब बताओ जरा ये सलीब का क्या कहना चाह रहे हैं मिर्जा साहब। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਚੜੇ ਨੇ ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤੇ चढ़े ਮਿਰਜ਼ਾ ने और जिथे ਇੱਕ ਮਿੰਟ, तकलीफ मिली है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫੀ ਕਲਮਾਤ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਚੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜਦਾ ਹੈ ना। नहीं आमिर भाई आपकी बात टोक रहा हूँ, मिर्जा साहब ने आगे ही कह दिया कि वो सलीब पे नहीं चढ़े, उनने बाग में सारी रात दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उनको सलीब और सलीब का नतीजा से निजात दे दी। नहीं भाई बचा वो लिया। मिर्जा साहब का मानना ये नहीं है, मिर्जा निजात साहब दे का दी ना, मानना ये समय है, मिर्जा साहब का मौकफ सुन ले यार ये आप लोग- नहीं मोहम्मद हुसैन साहब कितनी देर गाल की थी मोहम्मद हुसैन ये सारे खुद फैसला कर लें, फिर हमसे सवाल पूछ लें। ये मतलब एक कि इन्होंने तीन साथ लोगों ने हिंदू बात जोड़ा हुआ नहीं है, समझाना है भगवान। मुझे। तीन लोग अभी इसमें समझने वाली बात तो है कोई नहीं जो मैंने समझनी है, मतलब कि आप मुझे वो बात समझाना चाह रहे हो जो मैं समझना चाह ही नहीं रहा। आपने एक हवाला पेश किया वो मैंने बता दिया, अहमद नजीर को मैंने मुखातिब किया है कि अहमद नजीर साहब इसका मतलब समझा दें, क्या इनको भी वही इत्तेफाक है जो वारिद साहब को है। मुझे पता नहीं, क्योंकि जो बंदा अभी 16 जमातें जिसने पढ़ी हैं और पढ़ाई हैं उसको पता है स्लीप का क्या मतलब है। ये क्या बात कर रहे हैं मिर्जा साहब। मिर्जा साहब ये बता रहे हैं कि वो तकलीफ और वो अज़ियत के लिए, वो कुर्बानी के लिए वो ऊपर चढ़ गए स्लीप पे, तो मैं भी वो कुर्बानी देने के लिए, वो जीते बर्दाश्त करने के लिए मैं भी तैयार हूँ, ये उसका मतलब है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई मतलब लेकिन समझ आगे आता है तो कंट्राडिक्ट बिल्कुल कर दिया ना मतलब मोहम्मद हुसैन साहब तो कंट्राडिक्शन यार, बाद में करेंगे जी, बात करने दो और उनको। ठहर जो भाई, ठहर जो अभी जो भगवान साहब एक जुमले में आपका मैं जवाब दूं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। मिर्जा साहब का यही मौकफ है, ये आप जरा देख ले, समझ ले। मिर्जा साहब अच्छा ने ये यही बताएं कहा, वो मुझे चढ़े मुझे और वो नीचे आ गए मुझे बाद में। आसान सा सवाल है मेरा मोहम्मद हुसैन साहब आपसे, ईसा को सलीब पे चढ़ाया गया या नहीं चढ़ाया गया? चढ़ाया गया लेकिन वो बच गए ना, वो बच गए, वो नीचे आ गए। अब मुझे इस जुमले की तफसील और मैं नहीं जाना सुन लें यार, अब मेरे मोहतरम, सुन तो लें, इस जुमले की तफसील और तावील करके बताएं क्या सलीब और सलीब के नतीजे से निजात दी। हाँ इसमें क्या तो सही सलीब कहा है से ना उन्होंने। सलीब से निजात बनती कि नहीं सलीब- बनती? मतलब कि यार मतलब मोहम्मद कि वो- हुसैन साहब इसके सवाल का जवाब ना उनको- लें, इसको कहें कि पहले मुसलमान हुए, कलमा पढ़े नीचे में उन्होंने और अपना सलीब नाम के बदल कर आए। नतीजे आप इसके सवाल का जवाब ना, ये तो है ही के बंदा नतीजे हिंदू। में उनकी जान जानी हमने थी, हिंदुओं को वो जवाब नहीं नहीं गई। देने।
हिंदुओं को जवाब नहीं देने? वाटर साहब एक मिनट हाँ, हकीकतुल वही लगा दूं मोहम्मद आपके हुसैन सामने साहब, अभी आसान वाटर आसान साहब। इसको कहेंगे पहले ओ कलमा यार, पढ़ ठहर के जाओ आए भाई, ठहर और जाओ। अपना वाटर साहब मुझे ओहो। वाटर सर वैसे सच्ची बात बताऊं, मुझे तो आप अहमदी भी 2 नंबर लगते हैं। बस इधर बैठ के मुझे लगता है आप ठट्ठा करते हैं, उनकी साइड लेके ना उनको गालियां पड़वाना चाहते हैं आप, ठीक। उनको जलील करवाना अच्छा चाहते हैं ना। तो चलो आपके छोड़ो पास यार, सिलम है ना भगवान आपके पास भगवान हवाला है, भगवान अब सिर्फ भगवान इधर साहब बैठ के रहने दो मजाक यार, कर रहे हैं। भाई अपना नाम तो ठीक कर दिया पहले। भाई भगवान मेरा साहब, नाम बात जो भी सुनो है, इधर। आप जजमेंटल क्यों हो रहे हैं? छोड़ो यार। जजमेंटल होने का तो हक भाई आपको यार किसने दिया है? जजमेंटल क्या है यार, तुम्हारा नाम ही भगवान है, तुम तो आमिर भाई शिरक 1 to 1 की बात करवा रहे हैं, शिरक की बड़ी मूर्ति मेहरबानी हो होगी। तुम। वाटर साहब के मैं पल्ले शिरक का हूँ नहीं यार, है। मैं शिरक हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं काफिर हूँ, मैं जो भी हूँ। आपको इससे क्या लगे? बार बार जजमेंटल हो रहे हो। भाई हम मैंने क्यों कुछ तुम्हारे जुमले कसे सवाल हैं का आपके जवाब दें? अकीदे तुम पे, पहले आपके मुसलमान काबिर पे। तो हो, तुम पहले मुसलमान हो के आओ, फिर हम तुमसे बात ओ करेंगे। वाटर साहब आपके पल्ले का तो जो नहीं है, मिर्जा आप 2 साहब मिनट जाके लगाएं। क्रिश्चियंस के साथ डिबेट करते रहे थे, वो फिर कह दें कि वो मिर्जा साहब बिल्कुल जो यार है वो हम हिंदुओं खच के मारते सवालों का रहे थे। जवाब नहीं देते यार। हम नहीं, आप मिर्जा साहब को पहले चाहिए था ना कि सिर्फ मुसलमानों से डिबेट्स करते। आप मिर्जा साहब primitive क्यों जाते लोग थे हो। जाके क्रिश्चियंस के साथ डिबेट करते थे, हिंदुओं के साथ डिबेट करते थे? आप उनको भी primitive आप वाला बंदे हो अकीदा यार। रखना चाहिए था ना कि हिंदू हम पहले आपसे मुसलमान क्या- हो, क्रिश्चियन पहले मुसलमान हो। ये आपका इल्मी लेवल है, ये आपका आप तो अकली लेवल है। सही बात हिंदू आप भी करने नहीं है। बैठे हैं इधर। आप सही हिंदू भी जब नहीं है। मैंने नहीं तो कोई आपसे हिंदू अपने नहीं अकीदे देखा का दिफा होता, जिसका जब नाम नहीं आपने भगवान हो। अपने काबिर की किताबें पढ़ी, तो क्यों बैठे क्यों है इधर? सिर्फ तो उनको तुमने जलील जो कराने अपने के लिए। काबिर की किताबें पढ़ ली हैं यार। वो प्यारे भाई घर ओए के आके वाटर, बैठे। ओए वाटर, ओ चुप कर जाओ खुदा दा बार बार वास्ते। आप जजमेंटल हो रहे हैं। यार मैं इस आपको बंदे 2-3 को बार तो परे इग्नोर करो कर यार। बैठा हूँ। ये जोसेफ, हिंदू है, इसका ये तो शिरक कोई मजहब करता ही है। नहीं है। कचरा पत्थरों बात की करते पूजा हैं, करने वाला। काम की बात करने दे दो वाटर साहब को, काम बात की बात सुनो, करने ये दो हमें। भगवान की बात ठीक है, भगवान राइट पे है, वो बात ठीक कर रहा है। और बात नहीं करने यार, की उसको मोहम्मद इजाजत हुसैन है, हुसैन दोबारा साहब। करे बात। नहीं यार नहीं, मेरी मेरी बात भाई भगवान गल की बात करवा ये दो जुआरी कि है। मोहम्मद भगवान हुसैन साहब बहुत के बड़ा नाम के जुआरी नहीं। है। ये जुओं में जज बना होता है, और ये हुसैनी बलीद साहब की साहब। ब्रॉडवे शातमियत करता था बलीद आके, साहब। उन्होंने इसको किक मार के बाहर निकाल दिया। बहुत बलीद बड़ा अच्छा, ये साहब, शासक है। बात करवा वाटर दें साहब कि दोबारा ये ये फिर आजादियत के अलावा जजमेंटल हो रहे ये हैं, बैन ऊपर हो से गया हुआ है। झूठे ये इल्जाम लगा रहे हैं। जुआरिया और शातम है। इसको ऊपर से हुसैनी साहब झूठे ने इल्जाम अपनी लगा रहे ब्रॉड हैं। से और निकाल दिया। एक तो ये बंदे के पास इल्म नहीं है, दूसरा ये इसने बंदा जो है नियो जजमेंटल और है, इसने तीसरा नियो ये के बंदा साथ झूठे मिलकर इल्जाम भी लगाता 1 है। घंटा शातमियत की हुई है। किस लिए? यार तुमने ये शातमियत फजूल की बात हुई है, ना। हुसैनी साहब ने यार तुम्हें ये बैन फजूल किया हुआ है। बात आप ना करें वाटर साहब, आपकी मेहरबानी है। अच्छा, यानी फिर आप शातमियत जरूर जो उनसे- करे आप अच्छा, उसका अगर मैं साथ मिर्जा देते साहब हैं। को मिर्जा साहब को उनका दावा नबूवत को झूठा कहूंगा, आपके नजदीक ये शातमियत है, तो मैं क्या करूं? मैं और मजबूर हूं ये भाई तुमने शातमियत तो करने इतनी के गंदी लिए। गंदी बातें रसूल पाक के खिलाफ कोई की थी, एक हुसैनी रिकॉर्डिंग साहब दे, ने तुम्हें एक निकाल दिया रिकॉर्डिंग था। दे। मैंने रसूल पाक को छोड़े, मैंने रसूल पाक के किसी सहाबी को भी कहा हो, एक और रिकॉर्डिंग दी। तुमने इतनी ज्यादा वो की थी शातमियत, तुमने और नियो ने तो मिलके लगती तुम है दोनों ना बैन हो गए शातमियत थे। जो आपकी किताबों में लिखा है, वो जब पढ़ूंगा आपको और शातमियत भाई तुम्हारा लगेगी। तो मुकदमा ही मैं मिर्जा मुसलमानों के साहब को खिलाफ अगर था। दावा नबूवत उनका और वाटर झूठा साहब, कहूंगा, वाटर मिर्जा साहब साहब को मैं कहूंगा कि ये उनका दावा शातम है, दजल पे था, शातम है। दजल पे था, तो आपको शातमियत शातम है, लगेगी। और अगले दिन अब ही मेरे बैठा लिए तो ये शातमियत नहीं है ना। ये आमिर नजीर के साथ जुआ खेल रहा था, अगले दिन ही बैठा जज बना यार हुआ ये था। फजूल बातें करने का कोई मकसद है? हाँ जी, बहुत फजूल है यार ये आपके पास वाटर, अक्ल है ना, बहुत आपके फजूल पास बकवास इल्म करता है है ना, आपने अपने काबिर को तेरे पढ़ा है पास ना, तो- आपको अपने अकीदे का पता है, बैठे हैं इधर दिफा करने। क्यों बेइज्जत भगवान करवा रहे हैं सिर्फ और उनको? सिर्फ, और क्या नाम है इसका वाटर बिला वजह फजूल। अच्छा, आज वलीद साहब, और क्या नाम है अपना मोहम्मद हुसैन साहब, अलीम भाई, आप मौजूद हैं यहाँ पे? आपने अभी 2 मैं मिनट तो पहले मौजूद फरमाया हूँ, और मेरे लिए बड़ा आसान बात है ये, जो मैं अगर मुकम्मल कर पाऊँ। मेरे लिए तो मैं प्रोग्राम सुन ही लेना, बढ़ गया सर आज। मेरे लिए ये तो प्रोग्राम ग्रुप ही है ना, बढ़ गया। मिर्जा साहब हमें भी तो से इजाजत प्यार दें बात करते हैं। करने की। आमिर भाई जे तुसा लोग सारे ने आपस ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। नहीं करो करो, खेडन लेकिन दो जी, सलीब खेडन नाल दो, प्यार इतराज करने वाली लेके मैं आए ते अज गल सुन के ते मेरा ते लूं कंडिया आ गए ने। ये कहंदे सी कसरे सलीब करना आए हैं। अच्छा, मोहम्मद हुसैन साहब ने काफ़ी सारी बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि मसाया जो है वो कुर्बानी देने के लिए सलीब पे चढ़ के, बिल्कुल दुरुस्त बात की है उन्होंने, हम भी ये मानते हैं और कुर्बानी पूरी हुई है। अब इन्होंने फिर दूसरी बातें इसके अंदर बहुत सारी की हैं, वो कोई लेना देना नहीं इन बातों का। बात यहाँ पे ये हो रही है कि क्या मिर्जा साहब सलीब से प्यार करते हैं? किसी भी मायनों में आप ले लें, मिर्जा साहब कहते हैं हाँ मैं ठीक है। सलीब से प्यार करता हूँ और मखलूक की भलाई के लिए सलीब से प्यार करता हूँ। मसाया भी मखलूक की भलाई के लिए सलीब से प्यार करते थे। बात ये हो रही है, अब ये जितनी मर्जी लेपापोती कर लें उसके ऊपर, ठीक है। मिर्जा साहब ये मानते हैं कि मैं सलीब से प्यार करता हूँ। ये कहते हैं जी कौन सी सलीब है, इनको नहीं पता कौन सी सलीब है। ये बच्चे हैं, ये अगर इनको ये
ये नहीं पता कि कौन सी सलीब है, तो ये करने क्या आए यहाँ पे बात करने के लिए? सबको पता है कि मसाया कौन सी सलीब के ऊपर चले। ਇਮਰਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਕਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ
ਕਰ ਵਾਲਿਦ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਰਦੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਕਲਾਕਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਲਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ 16 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਪੜਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੋਤੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਐਡਾ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ने सलीब ਨਾਲ प्यार किया और उन्होंने सच्चाई के लिए सलीब से प्यार किया, इस तरह उस पर चढ़ गए। अच्छा, इसे तरह ही मखलूक दी भलाई वास्ते मैं भी सलीब ਨਾਲ प्यार करना वा, मतलब कि मैं भी वो कुर्बानी देने वास्ते, वो अज़ियत बर्दाश्त करने वास्ते, वो तकलीफ चुकन वास्ते मैं भी तैयार है। ये सलीब है, वो वाली लिटरली सलीब है, मतलब जिथे उन्होंने वो किले ठोके ने, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ। जवाब आमिर भाई जवाब लेने दो। अच्छा जी, उन्होंने चूंकि ईसाइयत का है, फिर उन्होंने 2-3 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मुझे भी इजाजत होगी, तो ये बुरा नहीं मनाएंगे। इन्होंने मरज़इयों ने क्या करनी है? नहीं मैं करूंगा जी आमिर भाई, नहीं तो फिर मुझे नीचे उतार दें, वो करें तो कोई मसला नहीं, हम मैंने कोई ਇਹਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ, ना ਇਹਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਡਾਲੇ भाई, मैंने मैं कोई जो ईसा अलैहिस्सलाम के आपने मुतल्लिक़ किए वही करूंगा। इस्तेमाल नहीं किया, कर लें आप मैं ऐसे। जो आपने किए मैं वही करूंगा। मैंने ना भी किए फिर भी अब कर लें, आपको इजाजत है? ठीक है, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। नहीं कर ले, मैंने कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर करना चाहते हैं मेरे के बगैर फिर भी कर ले, मेरे बारे में मैं मना नहीं करूंगा, कर ले। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, मरज़इयों ने या मिर्ज़ा साहब ने क्या सलीब तोड़नी थी या क्या कसरे सलीब करनी थी, जो इनके हालात हैं वो सबको पता है। इनके मरज़ई जो हैं, नबील कुरैशी वो मसीही हो गया, तैमूर साहब यहाँ टिकटॉक के ऊपर घूम रहे हैं, वो मसीही हो गया, साकी साहब नीचे घूम रहे हैं, वो मुसलमान हो गए। मरज़इयाँ ने की कसरे सलीब करनी है, मरज़इयत का तो अपना ही हाल बड़ा बुरा है। बहरहाल मिर्ज़ा साहब क्या फरमाते हैं? मिर्ज़ा साहब कहते हैं तरियाकुल कुलूब जिल्द 15 के अंदर सफ़ा नंबर 499 के अंदर, उन्होंने सच्चाई के लिए सलीब से प्यार किया। मतलब क्या है कि सच्चाई असल में सलीब ही सच्चाई है। सच क्या है जी? सलीब, सलीबी पैगाम असल में सच्चाई है। इसीलिए तो मसाया सलीब से प्यार कर रहे थे, उनको पता था कि सच्चाई ही सलीब है भाई, सलीब के अंदर ही सच्चाई है। और इसी तरह उस पर चढ़ गए जैसे एक बहादुर सवार खुश अनान घोड़े पर चढ़ता है। मिर्जा साहब नू आप अंग्रेजी भी कोनी सी आंदी है, सानू कह रहे हैं कि तुहानू उर्दू कोनी आंदी। बहरहाल ऐसा ही मैं भी मखलूक की भलाई के लिए सलीब से प्यार करता हूं। मिर्जा साहब ने कोई इधर ये जो लेपा पोती ये कर देना, कोई लेपा पोती नहीं की या कोई पंचर नहीं लगाया। ऊपर आप अगर पढ़े ना 498 कहते हैं चूंकि मैं मसीह मौद हूं इसलिए हजरत मसीह की आदत का रंग मुझ में पाया जाना जरूरी है। ये 498 के ऊपर मिर्जा साहब ने लिखा है। और मसीह की आदत का रंग क्या है कि मसीह सलीब से प्यार करते थे और मिर्जा साहब भी सलीब से प्यार करते थे। आज अगर कोई मुसलमान मिर्जा साहब के गले के अंदर सलीब टांगता है तो वो कोई गलत नहीं करता। ये काम मैं भी करूंगा, हो सकता है, मैंने किया भी है वैसे, ये तो कोई गलत काम नहीं है भाई। मिर्जा साहब से ना तो कसरे सलीब हुई है, मिर्जा साहब ते आप सलीब ना प्यार पे कर देने थे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਥੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਚੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਮਾ ਕਤਲੂਹੂ ਵਮਾ ਸਲਬੂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਲੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ 'ਚ ਲਟਕਾਈ ਹੈ?
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਸਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਜ਼ਫ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੋਜ਼ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਐ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਬਾਰ ਪੜੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਫੀਦ ਜੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। नहीं आप सिर्फ कंटिन्यू करना, मैंने भगवान साहब से सिर्फ एक बात करनी है। आपने बड़ी अच्छी वजाहत कर दी। अलीम आप इधर ही रहें, राना साहब भी आए हुए हैं, आप दोस्त दोनों कंटिन्यू करें। मैंने सिर्फ एक पॉइंट ये ऐड करना है। भगवान साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर मेरा जवाब सुन के जाना है राजा साहब। ऐसा नहीं कहना कि अभी मेरे पास टाइम नहीं, हम टाइम रखेंगे, बैठेंगे, तफसीली बात करेंगे। मैं एक बात कर देता हूँ ना, उससे पहले ही आपने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की किताब से एक हवाला पेश किया, उसका जवाब हमारे दोस्तों ने दे दिया। अब मैं उस पे थोड़ा सा एक और पहलू से सिर्फ एक पॉइंट रखूंगा। आपने मानना हुआ मान लें, वरना आप इस पे कायम रहें, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? अच्छा, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं, मैंने अभी तक मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब से कोई हवाला नहीं रखा। चले इधर आपको मैंने मुखातब एक संजीदा इंसान समझ के किया है। अगर आपने ये कुछ करना है तो फिर आप जारी रखें। नहीं सर, मैं सिर्फ आपकी इस्लाह के लिए कह रहा हूं कि मैंने अभी तक कोई हवाला पेश नहीं किया कोई किताब से किसी। ये हवाला कहाँ से पेश किया? ये हवाला ये जोसेफ भट्टी साहब ने पेश किया, मैंने नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, जिसने भी पेश किया, लेकिन उस पे आप कलाम आप भी कर रहे थे तो मैं आपसे मुखातिब होना चाह रहा हूँ। अच्छा चलें, आप कर लें अपनी बात जी। उसमें जैसे अलीम ने बात कर दी है वाजे, इसमें एक तो ये है कि इसमें इतनी हाशियत राजी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जिस स्लीब का वो जिक्र कर रहे हैं उस स्लीब से मुराद वो स्लीब है फिजिकल लिटरल सेंस में, जिस पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया और उनको तकलीफ़ देने की कोशिश की गई, उनको तकलीफ़ दी गई। ये तो बड़ी सादा सी आम फहम बात है। तो वो स्लीब और स्लीब है। अगर उससे ये नतीजा निकालने की कोशिश की जाए कि जो सलीब से आज मुराद लिया जाता है यानी तसलीस का जो अकीदा है, तो उसका तो रद्द भी किया हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने, और सारी ज़िंदगी आपकी इस चीज़ से इबारत है। उन्होंने उस ज़माने में सारी ज़िंदगी आपकी इस चीज़ से इबारत है। उन्होंने उस ज़माने में ईसाई मिशनरी से मुनाजरे किए, मोबाइलें किए, किताबें लिखी, और कफ़ारे के अकीदे का और जो भी इस तरह के अकायद ऐसे थे जो जिस पे सलीब यानी इस वक्त सलीब आप अगर बात पूरी कर सकते हैं यहाँ पे इन्हीं मौजूआत के ऊपर, तो फिर आपकी बात नहीं उनको बात करने दें, बात करके फिर चले जाएं। भट्टी साहब उनको बात करने दें, हमारे पास मौजूद है। फिर उन्होंने कहा है कि मुझे मौका देंगे। तस्लीस का अकीदा मसीहत के अंदर पाया जाता है, कफारे का अकीदा भी मसीहत के अंदर। भगवान साहब आप तो मानते नहीं है, तो फिर हम लेकिन उन्होंने मुझे मुखातिब किया इस बात पे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं उनकी बात सुन लेता हूँ, फिर मुझे मौका दें सिर्फ 30 सेकंड, ताकि मैं अपना एक फर्क बता रहा हूँ जिस पे इतना जोर दिया जा रहा है। जिस स्लीब का वहां जिक्र किया गया वो लिटरल सेंस में उस जमाने में जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई, जिस पे चढ़ा के उनको मारने की कोशिश की गई, यानी एक वो तकलीफ है उसका जिक्र फरमा रहे हैं। जो अब सलीब जो बतौर अकीदा जो ली जाती है, उस सलीब का रद्द करने के लिए कसरे सलीब के लिए आए थे। वो माने या ना माने, उन्होंने अपने बुरहान से अपने दलाइल से उसका रद्द कर दिया, उस अकीदे का रद्द कर दिया, और उसकी एक लंबी तफसीलात है। बाकी रही बात यह कि उन्होंने खुद सलीब से जो प्यार किया उससे भी यही मुराद है। जिस तरह अंबिया आते हैं उनको तकलीफें दी जाती हैं, बसमूल हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनको तकलीफें दी गई। पहले अंबिया को भी उनको इनकार भी किया गया, उनको तकलीफें भी दी गई। तो यहाँ वो क्योंकि उन्होंने मसीह मसीह का दावा किया है, तो इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तकलीफ सलीब पे जो तकलीफ का जिक्र है उससे मुमासलत अपनी करे कि मुझे प्यार है, मुझे इस तकलीफ से इस्लाम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए मुझे भी उस सलीब से प्यार है। लेकिन आगे वो ये बात करते हैं कि जिस तरह उस सलीब के जो नतीजा निकालना चाहते थे यहूद, उससे खुदा ताला ने उनको बचा लिया और उनके इंतजामात कर दिए। वो हमारा आप उसको ना करें, लेकिन चूंकि हमारा उस पर अपना एक मौकफ है, तो उसके मुताबिक वो सलीब दी गई, लेकिन जो सलीब का नतीजा था उससे बचा लिया गया। यही हजरत साहब अपने बारे में फरमा रहे हैं कि मुझे उस तकलीफ से वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, मुझे दी जा रही है, मैं उनसे प्यार करता हूँ तकलीफों को इस्लाम की खातिर। लेकिन इनके नताइज से जो दुश्मन उस वक्त निकालना चाहते थे कि हजूर को मिशन को नाकाम करना चाहते थे,
یا ان کو بعد مارنا بھی چاہتے تھے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو اس میں تو کوئی ایسی اعتراض والی بات نہیں ہے. آپ چونکہ اب ان کی شخصیت کا ان کے مقام کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بات درست ہے، ورنہ یہ تحریر بڑی سادہ اور صاف ہے، اس میں کوئی ایسی اعتراض والی یا کوئی ابہام والی بات نہیں ہے. صحیح. چلیں، یہ جو جتنے بھی بلیورز ہوتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ جتنے بھی بلیورز ہوتے ہیں کسی چیز کے، کسی شخص کے، کسی کتاب کے، ان کے لیے کبھی بھی کوئی چیز جو ہے نا وہ کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ ان کا ایمان ہوتا ہے. سو ان کے لیے ہر چیز بڑی سادہ، بڑی سمپل، بڑی کلیئر ہوتی ہے. اعتراضات ان کے ہوتے ہیں یا ان کو وہ چیزیں کنفیوژن میں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو اس چیز کے بلیور نہیں ہوتے، جیسا کہ میں ہوں. سو میں نے نہ تو یہ حوالہ دیا پہلے، تو یہ میں آپ کو بتا دیا آلریڈی. اور دوسری بات ہے کہ میں اس پہ کوئی حاشیہ آرائی کچھ نہیں کر رہا تھا. میں بڑی تسلی سے ان کے ساتھ دونوں بھائیوں تینوں کی گفتگو سن رہا تھا. میں نے صرف اتنی عرض کی کہ مرزا صاحب کی یہ جو ہائی لائٹ بات کی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح نے صلیب سے پیار کیا، جس کی مراد آپ نکال رہے ہیں، بالکل آپ اپنے تائیں بالکل صحیح مراد نکال رہے ہوں گے، اس پہ بھی میرا کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن ساتھ ہی اگلی لائن میں ان نے اس چیز کو کنٹراڈکٹ کر دیا. میرا صرف اتنا موقف تھا اور وہ بالکل کنٹراڈکٹ کیا. ابھی آپ نے اپنی بات میں کہا کہ جس طرح جیزس کو صلیب دی گئی، وہ اس تکلیف سے گزرے، ان نے وہ تکلیف برداشت کی اور اس کو پیار کیا. اسی طرح مرزا صاحب تکلیف کی بات کر رہے ہیں جو انبیاء پہ آتی ہیں، اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیزس نے وہ تکلیف نہیں سہی، اللہ نے ان کو وہ تکلیف نہیں دی. اگلی لائن میں لکھ دیا انہوں نے. تو اب مجھے بتائیں ایز اے آؤٹ سائڈر میں مرزا صاحب کی کون سی بات پہ یقین کروں، پہلی بات پہ یا دوسری بات پہ یقین کروں؟ پڑھیں نا، وہ پڑھ لیں لائن پڑھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں، ایک سیکنڈ، ان کا کیمرہ بلر ہو گیا. اور میں یہ آگے یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح خدا تعالی کے فضل اور کرم نے حضرت مسیح کو صلیب سے بچا لیا، ایک تو وہ صلیب سے بھی بچ گئے، ٹھیک ہے جی، اور صلیب کے نتائج سے نجات دی، ٹھیک ہے، اور آگے لکھ رہے ہیں دی ایسا ہی مجھے بھی بچائے گا، اور حضرت مسیح صلیب سے نجات پا کر یہ پھر بلر ہے، ٹھیک ہے، اتنی بھی بات سمجھ آ گئی ہے. ہاں جی. تو صلیب سے دونوں باتیں کر دی نا راجہ صاحب، انہوں نے کہا صلیب سے اور صلیب کے نتیجے سے دونوں سے ہی نجات دے دی اللہ نے. تو کوئی بات نہیں، یہی بات ہوئی. میں بتاتا ہوں صلیب سے. اب آپ یہ ہے کہ آپ نے مراد کے لینی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے صلیب سے پیار کیا اور صلیب پر چڑھ گئے، یعنی اس قربانی سے دریغ نہیں کیا، اس سے ہٹے نہیں، اپنے موقف سے ہٹے نہیں، اپنے ایمان سے ہٹے نہیں، جو ذمہ داری خدا تعالیٰ نے دی تھی اس سے نہیں ہٹے. ٹھیک ہے، خوفزدہ یہ ہوگی ایک سٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، سن لیں. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام بھی جو بھی ان پہ اس وقت جس طرح سے تھا، پریشر تھا یا مطالبے تھے مخالفین کے کہ آپ کا یہ دعویٰ یا ان عقائد سے وہ آپ دستبردار نہیں ہوئے. آپ کو چونکہ خدا تعالیٰ نے مامور کیا تھا، اس لیے جو بات بھی اس پہ قائم رہے، تکلیفیں برداشت کی جو اس زمانے میں ان کو جس طرح سے دی گئی. اب آگے یہ ہے کہ صلیب کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اور اس کی صلیب سے اس وقت کیا مراد تھی، یہود کیا کرنا چاہتے تھے اس وقت؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لعنتی موت ہے، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نہیں دیکھیں، میں روک دوں گا، کافی دیر سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں ہمارے ایمان کے اوپر، اور بات آپ کے ایمان پہ نہیں، میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں. نہیں، بالکل نہیں ہے. لعنتی موت کا کوئی یہود کا عقیدہ نہیں ہے. رومیوں کی صلیب ہوتی تھی. سن لیں، آپ ایک حوالہ مجھے پوری تناغ سے یا برید خدشات سے، نئے عہد سے یا پرانے عہد نامے سے ایک حوالہ دے دیں لعنتی موت کا، جو آپ کہیں گے میں کروں گا. جب اس بائبل کے اندر لعنتی موت کا لفظ نہیں ہے جی، میں بتاتا ہوں، بائبل کے اندر. میری بات سن لینا، جب اس معاملے پہ آپ سے بات کریں گے نا تو اس وقت وہ حوالہ دے دیں گے. ابھی میں اس تحریر پہ بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ نے بھی لعنتی موت کا ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کے اندر لعنتی موت سمجھا جاتا تھا، وہ حوالہ دیں بھگوان صاحب کو. ایک منٹ سن لیں نا، سن تو لیں نا، صبر کر لیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، جب آپ سے کبھی اس موضوع پہ بات ہوگی، ہمارے دوست کرتے بھی ہیں اور دیتے ہیں حوالے. آپ دیکھیں، سن لیں، میں یہاں پہ موجود پہ بات کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ اس سے انکار کر دیں. آپ زبردستی نہیں ہے، میں اپنا موقف تو دے سکتا ہوں نا، تو میں اپنا موقف دے رہا ہوں. نہیں، آپ میری کتاب پہ اپنا موقف نہ دیں جی، بڑی آپ بھی تم ہماری کتاب پہ اپنا موقف. میں نے پڑھا ہے، میں نے موقف نہیں دیا، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کی کتاب کو. تو ہم بھی اس جو پڑھ کے بتائیں لعنتی موت کا لکھا ہوا ہے. ٹھہر جائیں، اگر پڑھ کے دینا تو پڑھ کے خاموش ہو جایا جاتا ہے، بحث نہیں کی جاتی، پھر سوال کیا جاتا ہے بس. میں پڑھیں، کہاں لکھا ہوا لعنتی موت؟ نہیں، پہلے ادھر آپ طے کر لیں یہ بات. ایک اپنے لیے رکھیں اور دوسروں کے لیے نہ رکھیں نا. میں نے پڑھا ہے. نہیں، سن لیں.
पहले तो बात यह है कि आप यहूदी हैं या मसीही हैं? भाई मैं मसीही हूँ। हाँ, तो फिर मैं तो यहूद का हवाला दे रहा हूँ, उसमें क्या मसला? दिखाएं कहाँ है? मैंने ये मैं जहाँ भी हूँ, नहीं आपका भाई मसला कहाँ नहीं है ना। आप दोनों बातें आपने बिल्कुल मुख्तलिफ की हैं, बिल्कुल अपने आप को कंट्राडिक्ट भाई मैं तौरा को भी मानता हूँ, मैं तौरा नहीं, मेरी बात सुने आप। जोसेफ भाई वो उनको बात रखने दें, फिर अपनी बारी में जो है वो आप डिमांड देखिए ये करते हैं। बहुत गलत मैंने उनको तो मिसकंसेप्शन है जो ये मुखातिब नहीं फैलाते हैं कि जी यहूद लानती मौत मानते थे। हाँ, तो मैं यहूद आप हाँ, नहीं, तो आप बताएं। वो तो चलें, वो उनको बताया आप जा यहूदी सकता है हैं? कि वो रोमन गवर्नमेंट नहीं यार गवर्नमेंट आप तो 24 घंटे वो ये तो लैपटॉप बात ही करनी मुश्किल है। लिखो क्रूसिफिक्शन की बात में इतना आपने कैपिटल पनिशमेंट थी, इसके अलावा कर्स पनिशमेंट तो कहीं भी नहीं थी रोमन के अंदर। हाँ जी, कैपिटल पनिशमेंट बिल्कुल रोमन के रोमन के अंदर ये कर्स पनिशमेंट कहीं पर भी नहीं है। परेशान हो गए, मेरी बात सुने। पहली तो बात यह है कि आपने ये कहा कि मेरी किताब से हवाला दे। भाई आप यहूद नहीं है तो मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूँ या रोमन्स का दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आप भी या तो हमारी किताब से आपने हवाला दिया, आप सवाल रखें, हमने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। आप अगर उस पर बहस करेंगे तो फिर आप इसका मतलब है हमें समझा रहे हैं कि हमारी किताब में क्या लिखा है, तो इसलिए ये हक दूसरों को भी दें। लेकिन खैर मैं उस रेफरेंस में ये बात कर रहा हूँ कि सलीब का वो नतीजा ये था कि सलीब के जरिए मौत, वरना तो और तरीके से भी मारा जा सकता था। जाहिर है उसका एक पस मंजर है और उस वजह से उन्होंने उनको सलीब पर चढ़ाकर मारने की कोशिश की। तो वो जो सलीब थी, यानी सलीब अपने पूरे मानों में कि सलीब के नतीजे में मौत, उससे भी खुदा ताला ने बचा लिया और उसके हर किस्म के नताए से खुदा ताला ने बचा लिया। तो यही अपने बारे में बात की है। तो बस इस पे आप 50 दफा भी और सवालात करेंगे, हमारा इस पे यही मौकफ है। ये तहरीर अपनी ज़ात में बड़ी वाज़ेह, बड़ी शानदार है, इसमें कोई इतराज़ बनता नहीं है। भगवान साहब मैं आपको पढ़ा लिखा बंदा समझता हूँ, मेरा हला आपके अगर कोई बाकी इतराज़ात हों जो बाद दफा होते हैं उस पर हम बात करते नहीं, आइंदा भी कर लेंगे। लेकिन बहरहाल कम से कम ये तहरीर किसी एक पहलू से भी इसमें गुंजाइश भी नहीं है। दूसरे इतराज़ात भी ऐसे ही होते हैं कि जिनकी समझ नहीं आप लोगों को आ रही होती, तो लेकिन इसमें तो मैं समझता हूँ कि कम से कम आप जैसा जो ठीक हो गया राजा मतान साहब, क्या नाम है अताउल मनान साहब, आपने तकरीर तो देना करनी, हमें भी मौका दें। बहुत शुक्रिया। बाकी आपने जाना नहीं है, सुन के जाएं, सुने जी सुने। इसमें और मैंने क्या सुनना है इस हवाले के बारे में? क्या पहली बात तो ये नहीं, मैं आपसे नहीं बात कर रहा, मैं भगवान साहब से बात कर रहा हूँ, मैं भगवान साहब से बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मैं नहीं, आप म्यूट लगाएं, मैं बोला नहीं काफी देर। अच्छा, सबसे पहली बात ये आमिर भाई बात कर ले, हमें सिर्फ समझ आने दें कि ये जिस सलीब से मिर्जा साहब प्यार करते थे वो सलीब कौन सी है, और जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम चढ़े थे वो सलीब कौन सी है? राजा साहब चलेंगे उनसे बात करने। मेरी तो सिर्फ एक गुजारिश है, सारे जो अहमदी भाई सुन रहे हैं कि इनसे जब भी मेरी बात हुई है जाती तौर पे, एक लफ्ज क्रिस्टल क्लियर है लेकिन ये उससे मुराद निकाल लेते हैं। और इनने 80 जुबानों में कुरान का तर्जमा किया, लेकिन अभी तक ये जो डिक्शनरी इनकी अपनी है वो नहीं शाया की इनने, ताकि एक आम पढ़ने वाले को पता लग जाए कि सलीब के कितने मायने हैं, किधर किधर किस जुमरे में इस्तेमाल होगी, उससे मुराद क्या ली जाएगी। अगर ये काइंडली कर दें तो बड़ा आसान हो जाएगा कि ज़िल्ली नबूवत कौन सी होती है, उससे क्या मुराद है, नबी कितनी किस्म के होते हैं, कौन से नबी में क्या मुराद ली जाएगी, तो ये समझने वाले के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, मेरे जैसे बंदे के लिए। अभी उन्होंने क्या फरमाया कि सलीब का माने सलीब नहीं है? नहीं, उन्होंने कहा कि ये वो जो पहले सलीब लिखी गई है भारत में जिससे प्यार किया जाए, उससे मुराद वो सलीब है जो तकलीफ वाली सलीब है, जो लिटरल सेंस में ली जाती है। और जो दूसरी सलीब जिससे वो कह रहे हैं निजात दी अल्लाह ने, लिटरल नहीं, वो जो दूसरी सलीब जिससे निजात दी अल्लाह ने और उनको सलीब नहीं लगने दिया, वो लिटरल मानू वाली सलीब है जो क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं, जिसको वो कह रहे थे कि जिस पे जोसेफ भट्टी साहब भी सीख पा हो गए थे कि लानती मौत वाली बात, तो वो कह रहे थे कि वो वाली है जिससे अल्लाह ने निजात दी थी। और पहली सलीब है तकलीफ, और उससे मुराद है तकलीफ और आजमाइश। तो ये सलीब एक ही लफ्ज है, एक ही इबारत में, तो उसकी मुराद जो है वो दो हैं। सलीब एक लफ्ज है, मानी उसके दो हैं, एक सलीब वो सलीब है, एक बिल्कुल ऐसा ही, मानी दो हैं। एक मानी है तकलीफें जो अंबिया को आई, आजमाइशें जो अंबिया को आई, उससे मिर्जा साहब भी प्यार करते थे और यसु मसीह ने भी प्यार किया। और एक सलीब वो है जिसको वो लकड़ी का बना के और ऊपर बंदे को टांगा जाता है, उससे अल्लाह ने यसु मसीह को निजात दी, उस पे नहीं। मोहम्मद हुसैन साहब आपको बात समझ आई राजा साहब की, ये मतलब है इसका? मैंने राजा साहब की तो बात तकरीबन नहीं सुनी, मैं थोड़ा सा टेलीफोनिक आ गया था, लेकिन ये बात बड़ी सादा है
वैसे ठीक है छेड़ने के लिए यार स्लीव का मतलब क्या है, लेकिन वो कसरे स्लीव आप और खुद कह रहे हैं, ये नहीं नहीं हम नहीं कह रहे, मतलब आप कह रहे हैं कि स्लीव का मतलब स्लीव नहीं है। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ स्लीव का मतलब, मैंने तो नहीं कहा। राजा साहब ये नहीं कहते नहीं, हैं जो ना, बात इसमें राजा तो साहब ने की है उससे यानी ये इसमें जो बात लिखी है ना स्लीव वाली, वो बिल्कुल स्लीव का मतलब स्लीव ही है, वो क्रॉस है तो बिल्कुल। फिर ठीक तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, यही तो मैं रो नहीं रहा आता था। ना, कंट्रोडिक्शन है। अच्छा नहीं मुझे आता, बताएं, कैसे एक आता है? स्टेटमेंट है मोहम्मद सैन साहब, सिर्फ मेरी कंफ्यूजन के लिए 2 सेकंड, एक स्टेटमेंट है कि यसु मसीह ने सलीब से प्यार किया और वो सलीब पर चढ़ गए खुशी खुशी। चढ़ गए, हाँ ठीक है। ये कौन सी सलीब है, वो क्रॉस वाली? क्रॉस वाली, हाँ ठीक वो है। चढ़े और उनको स्लीव इसी दे दी तरह गई। मैं भी सलीब से प्यार करता हूँ। हाँ। कौन सी सलीब है, क्रॉस वाली? कौन सी क्रॉस वाली, हाँ हाँ। तो क्रॉस इसमें क्या ओके। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? हाँ, अभी तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, अभी तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अभी ये एक है मिनट, रुको। ये है एक स्टेटमेंट, ठीक है जी। हाँ, मतलब वो अगली जो लाइन में, अगली हाँ, लाइन ठीक में है। मिर्जा साहब फरमाते हैं, और जो यसु मसीह ने बाग में सारी रात दुआ की थी ना, उसके नतीजे में अल्लाह ने यसु मसीह को सलीब और सलीब के नताइज से बचा लिया। तो अब कौन हाँ। सी सलीब है? कोई करता, हाँ तो वो बिल्कुल बचा लिया ना अल्लाह ताला ने उनको। अभी पहले तो कह रहे थे कि वो चढ़ गए खुशी खुशी, वो तो अभी आपको कह रहे हैं पता नहीं बचा है, लिया। आपको क्या आप ना वाकिफ हैं कि जमात अहमदिया क्या मौकफ है ये सलीब के बारे में? अभी तो अभी ये मुराद नाबिल निकल आई नजीर ना, ने फिर बताया था। आप भी तो वही कर रहे हैं, मुराद तो नहीं निकल नहीं आई नहीं ना नहीं फिर। नहीं नहीं मुराद निकाल रहा भाई। आमिर नजीर साहब से जरा आराम से पूछ लें कि जमात का मौकफ क्या है वैसे इस सारे मामले के ऊपर, अलीम सॉरी सलीब मैं देने के ऊपर मौकफ क्या है। अगर वो मौकफ आपको पता होता, भगवान गुस्सा ना करना मेरी बात का यार, तो फिर दोबारा आपको दोहरा दे, contradiction मसला नजर नहीं है। आती। नहीं, दोबारा दोहरा दे, मैं मैं अपनी सुन रहा सादा हूं। बात कर रहा हूँ, उसमें फिर कंट्रोडिक्शन क्या कैसे रहे हो, मुझे तो आपकी ये समझ नहीं आ रही। यही मैंने तो मौकफ है। मैंने अभी समझने की कोशिश की और आपसे पूछा भी कि यसु मसीह सलीब से प्यार करते थे, क्रॉस वाली सलीब से, और खुशी खुशी उस पे चढ़ गए। नहीं क्रॉस वाली स्लीप से नहीं, गलत कर रहे हो आप। देखो अभी यार फिक्रा के 2 लिखा हुआ है। सेकंड पहले आपने और कहा है फिक्र- मेरे और भाई। मैंने तो कहा है चढ़ गए, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? पहले आराम से ठंडे हो जाओ जरा थोड़ी जी बात जी, सुनो। ठीक है। वो लोगों की भलाई के लिए उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया, ठीक है, इसका मतलब ये है। और इसी तरह मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि मैंने भी लोगों की भलाई के लिए वो सेक्रीफाइस करने से मैं भी तैयार हूं, और वो मुश्किलात बर्दाश्त करने को मैं भी तैयार हूं। ये एक बात हो गई। अब अगली बात आती है कि अल्लाह ताला ने उनको सलीब से बचा लिया। हाँ, उस ठीक है। सेक्रीफाइस से बचा लिया। नहीं, वो अज़ियत तो से भी बचा सलीब लिया का ना। मायने चेंज हो गया ना यार। नहीं ये चेंज क्या होता है? भाई। आप अलीम इधर भाई। से अज़ियत जब लेते हो ना, मतलब उसका जो उसको तकलीफ लेते हो, आप तकलीफ उनके जिस्म में को ठोकेंगी। कबूल करना, यही तो तकलीफ अलीम है साहब, इसका। अलीम साहब कौन सी अजीब सब चाह कीले उनके जिस्म में ठोकी गई, स्लीप पर उनको अच्छा, लटकाया गया। यार उनकी जान तो नहीं गई ना, जान ही ना गई उनकी। जी अलीम राजा मेरी साहब बात बोले। आ रही लटकाया गया, जी राजा अजीब साहब बोले। बताया ना। राजा अच्छा, साहब आप करें। सॉरी, मैं चूंकि मैं चला गया था, लेकिन भगवान साहब पे मैं हुस्ने ज़ान रखता हूँ कि उनको मेरी बात या उन्होंने सुनी नहीं तवज्जो से, या उनको समझ नहीं आई। तो उन्होंने जो मेरा मौक़िफ़ पेश किया उसका उन्होंने मतलब उसके परखचे उड़ा के रख दिए उन्होंने, जो मेरी तरफ मंसूब की ये मनान साहब, बात। आपको मैंने बात नहीं करने देनी, क्योंकि आप अपनी बात करके चले जाते हैं। आप अगर बात करेंगे मैं तो पूरी उससे सुन बात के कर ही जाएंगे। नहीं नहीं, आपने जो पहले बात की है उसका जवाब नहीं मैं हुआ। वलीद को मुखातिब कर रहा हूं। ना वलीद को नहीं मुखातब किसी को। आप देखें, आप हमारी किताब के ऊपर पूरी बात मैं करते तो हैं, फिर वलीद आप के चले पास जाते हैं। आया हूं ना, जवाब मैं तो चाहिए। आपके पास नहीं आया। नहीं, मैं ये एक स्लीव है, एक का मिर्जा मैं साहब बताता इतने स्लीव दे नाल इंज प्यार पे कर देने, ठीक है? पीछा ऐसे करो इस इनको, तरीके पीछा से। करो। नहीं पीछा करो अब स्लीप, या ना करो। नहीं, क्यों? आप क्या समझते हैं कि स्लीप कोई इतनी को बुरी चीज है? यार, मिर्जा साहब यहाँ प्यार करें स्लीप से। यार नहीं प्यार करते मिर्जा साहब, कसरे स्लीब ते आए सी। मिर्जा साहब ऐसी कह रहे हैं कि मैं प्यार करता हूँ स्लीप से। ਉਹ कसरे स्लीब ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ये देखें, मिर्जा साहब का दावा है, मैंने अभी आपको लगा के दिखाया हवाला। पीछे कर दो, ਇਹ पीछे स्लीब ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ स्लीब हो रही है। स्लीब तो भाई ये कौन सी स्लीप है? निशान तो वही है ना। आंदे ने और मैं स्लीब भगवान साहब आपसे अच्छा, इस वाली स्लीप से मिर्जा साहब नहीं प्यार करते, कौन सी ऐसे ना प्यार करो। करते हैं? ये जोजो भाई किसी के काबिल की पिक्चर वगैरह डाल नहीं दें। सुने, ये घंटे से कह रहे हैं कसरे स्लीप, कसरे स्लीप। जोसेफ हमारा भाई, ये तरीकाकार हमारे लिए नहीं ये होता। मुकद्दस नहीं है स्लीप। जोसेफ साहब ये तरीकाकार नहीं है। देखो नहीं, इतनी देखिए, गुफ्तगू आप चल रही कसरे है, स्लीप का दावा करते हैं। उनको बात करने दो,
कोई बात नहीं है ना, मैं नहीं ये बात इल्मी करने तरीका दूंगा। नहीं अतौल होता। मनान साहब ने ये पहले ऐसे नहीं ना फिर बात गलत होती भाई, बयानियां की हैं। ऐसे बात नहीं होती ना फिर। अतौल मनान साहब अगर जवाब लेंगे तो जाएंगे, नहीं तो फिर ये इनको मैंने बात नहीं करने देनी, मैंने रौला पा देना, नहीं तो मैं थले ला दूं। नहीं बारी बारी बात कर, बारी बारी आराम से बात अच्छा, कर। पहली बात ये है कि अतौल मनान साहब ने यहाँ पे झूठ बोला आके, नहीं मेरी बात सुने, अतौल मनान साहब ने आके बहुत बड़ा झूठ बोला है कि यहूदी जो थे वो लानती मौत मानते थे सलीब को, इसलिए उन्होंने सलीब के ऊपर मसाया को लटकाया। इन्होंने बाइबल का मुताला नहीं किया। वो मसाया को यहूदी जो थे वो किसी भी तरीके से मारना चाहते थे, भले वो पहाड़ से गिराने की भी उन्होंने कोशिश की है और उन्होंने मसाया को संसार करने की भी कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। सलीब जो थी वो यहूदियों का कानून नहीं था, वो रोमियो का कानून था। कौन से यहूदी ने कहा है कि सलीब लानती मौत थी? किसी यहूदी का लेके आया हवाला, जरा तौला से हवाला लेके आया जरा। आप एक सिर्फ कठपुतली बन के बैठे हुए हो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ वलीद, आपको मेरी आवाज आ रही है ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ या आप ਸਮਝ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रही सलीब जानबूझ के नहीं सुन रहा वलीद, जान के नहीं सलीब सुन रहा नजर नहीं आ रही। बारी बारी बात करने दें। अगर तो आपकी ब्राड का ये मछली मंडी वाला और एक मतलब ये कि वो तमाश बीनी राजा वाला साहब गल करो, बाकी थल्ले ला दो। राज साहब गल करें, बाकी सारी दुनिया में थल्ले ला दो। राज साहब गल करन लगे नहीं नहीं गल करन दो तो करेंगे ना वो। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨਾ ਹੋਦੇ। ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਖਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ। ਬਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਤੇ ਜੋ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਖਲਾਕ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੜਕੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ اخلاق ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਦੁੜਕੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। लेकिन ਅਸੀਂ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ और बेअदबी और गुस्ताखाना गुफ्तगू ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਐਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਜ਼ਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਓ ਉਸ ਬੇਹੂਲ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੁਖਾਤਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਸਟ ਵਾਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੈਯਦਨਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਲਾਏਗਾ, ਸੈਯਦਨਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਸਤਾਖ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ ਨਾ। ਸੈਯਦਨਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਸਤਾਖ ਤੇ ਖਾਤਮ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ वाटर ये देख लो, वाटर ये देखो। ਤੁਸੀਂ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੇ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਬੜੇ ਹੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸਾਹਿਬ। ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਰਸੂਲੁल्लाह ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਬੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਾਮੀ ਕਲਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾ। ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਸੂዕ ਮਸੀਹ की रूह है। किधर यार सारे हासिल हो का एलची हूँ
ਉਹ ਕਿਤੇ यार उनको बात करने दें, राजा साहब ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕ ਗਏ ਹੋ यही कुछ करोगे। अच्छा राजा साहब को गुजारिश है, राजा साहब को बात तो करने दें, राजा साहब को बारी दो, ऐसे ही अच्छी बात नहीं है। बारी बात करें, राजा साहब को भी बात करने दें, लेकिन एक गुजारिश है जोसेफ भाई, एक तो कैमरा बंद कर दें, बाकी किसी के काबिर पे यार कोई फोटो वगैरह या इस तरह नहीं, फोटो पे ना लगाएं, फोटो पे ना लगाएं, ठीक है। अच्छा सुन ले, इसका जवाब ले लें, अगर जवाब लेना चाहते हैं तो मैंने नहीं आपसे बात ही नहीं करनी ना, आपको मैं जवाब नहीं दे रहा, तो मैंने आपसे बात आमिर भाई को बात नहीं, सुन ले, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਵਾੜੇ ਹੈ ਅਏ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੋ, हद हो गई है यार। मैं मतलब यार अजीब ये मैं बात कर रहा हूँ आमिर भाई से, भगवान साहब से, अभी भगवान भाई देखें बात सुने, उन्होंने भगवान भाई बात सुन ले, इनको बोले बात करने दे, ताल मनान साहब आपकी ब्रॉड नहीं है, मेरी ब्रॉड नहीं है यार, मैं खुद मजबूर हूं। मैं इनको कह रहा हूँ वली साहब, इनको कहेंगे ये वली साहब की ब्रॉड है। अच्छा ऐसा करें, 2 मिनट टाइम लगा दें, 1 मिनट है, 2 मिनट जोसेफ साहब आपके हैं, मेरी बात सुने, 2 मिनट जोसेफ साहब आपके, 2 मिनट राजा साहब के, 2 मिनट इनसे मैंने बात ही नहीं करनी। वलीद आप जिंदा हो, आप 2 मिनट बात नहीं करना चाहते, फिर आपके लिए सारी दुनिया को कत्ल कर दिया जाए, आप बात करना चाहते हैं या डुबो दिया जाए पानी के अंदर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, 2 ਮਿੰਟ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਮਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਹੈ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਛੋੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲਦੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਪਰ ਥੋੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਨਾ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ पे करने हैं, यार इस बंदे ने गल करन दे दिया, शोर शराबा हरकत पे कर दे हो, शोर भाई चुप कर जाओ। मैं एक आमिर भाई सुनो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆमिर भाई के मिर्जा साहब ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। हज़रत वसीम अलैहि सलाम दे तासर करके गए ने, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਸੂਲullah अब्दुल्ला अतम सलीमुल फितरत मिर्जा साहब कह के गए ने, मोहम्मद हुसैन बटालवी नहीं कह के गया, ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। अब्दुल्ला अतम ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੀਮੁਲ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਰੋਲਾ ਪਾਓ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੌਸਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਗਲੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 3 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਰਾਬਰ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਆਈ ਲਵ ਮੁਹੰਮਦ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨੇ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆमिर भाई, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਫੀ ਕਲਮਾਤ ਇਹ ਨੇ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਛੁਪੇ ਸੰਪ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਆमिर भाई, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਲੀਬ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? 2 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਕਿ ਨਾ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਗ ਜਰਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ नहीं मेरा दिन है आज, वो गल वध गई है ना। अच्छा वो जोसेफ भाई हवाला लगा दें, वो मुझे लगता है मोहम्मद हुसैन साहब जो है वो कुछ हवाला ला के उत्ते स्लीब टंग दो, हवाले दे उत्ते स्लीब ला ए स्लीब ले जे कि हेलो वध गई जोसेफ यार, वो भी चले गए वो नहीं चले गए। इतनी झूठ बोलते कि जी ये यहूद के अंदर लानती मौत, भाई यहूदा ते कानून ही नहीं सी, वो सजावां देंदे नहीं सन सलीब। ਇਹ ਤਸਲੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਸ ਡੈਥ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤੌਰਾ ਪੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਸਲੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਲੀਬ। ਇਹ ਸਲੀਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਲੀਬ ਹੈ। ਮਾਰ ਤੜਿਆ ਜੋ ਥਾਂ ਹੀ ਓਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲੀਬ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋਜ਼ਫ ਭਾਈ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ, ਮੰਨੋ ਝੂਠਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਲੈਕ ਜੀ ਕਲਰ, ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਹਾਂ हाँ इंज नजर आ रहा है देना चाहिए। अच्छा वो रेफरेंस अगर दोबारा लगा दें आमिर, मैं लगाने लगा। मेरा जो सवाल था वो आपको समझ आया उसमें? मैं समझ गया था सवाल, लेकिन वो आप जो बात कर रहे थे ना वो मौजूद दूसरी तरफ जा रहा था। आप ये कह रहे थे कि मसीह स्लीप पे चढ़ भी गए और उसके बाद स्लीप से बचा लिया गया, यानी कि स्लीप के ऊपर चढ़ाया ही नहीं गया। आपका ये सवाल था। हाँ तो यही मेरे ज़हन में तजाद आ रहा था उनकी बात। तजाद ते बाद साडा इत्थे जेड़ा हमारा मुद्दा ये था कि मिर्जा साहब सलीब से प्यार करते हैं बस, बाकी आगे तो आप आगे लेके गए तो वो सारी खलते मुबस हो गई है। ये मसला भगवान साहब है ਵੱਡਾ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਤੋੜਨ ਆਇਆ, दावा तो उन्होंने है कि जे मैं स्लीव तोड़ के ना गया तो अच्छा जे कदे मौका दो ना, मौका दो 2 मिनटों ते जितनी तवील करके गए ना, जवाब 2 बारी मौका मांगया मिला नहीं। अलग करो सॉरी। अच्छा किसी भाई को ऐसे कोई किताब खोल सकना ना, तो रूहानी खजान जिल्द 9 ना सफा 368 खोले जरा, उत्थे दा जवाब लिखे है। ये जितनी ना तकरीर की थी ना कि इसका मतलब है जे तो भाई खोल सकना रूहानी खजान जिल्द 9 का सफा 368 जे। मैं खोल ना रुक जाओ एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूं। खोलो जरा। राजा साहब बराबरी की सतह ते गल नहीं कर सकते। राजा साहब का दिल हुंदा है भी सैनी साहब सारे थले ला के ना ते मैनू उत्ते बिठाण ते मैं गल करां, ते ओदे बाद मैं गल करके क्या बस मेरे को इन्ना ही टाइम सी, मैं चलिया, मैं मसरूफ हां। राजा साहब कि तमीज सीखो, इखलाक सीखो, ते गल करन वास्ते अपने अंदर जज्बा पैदा करो कि मैं बराबरी की सतह ते गल करनी है। जिन्ना टाइम मेरा होना चाहिए इन्ना ही दूजे का होना चाहिए, ते मैं दूजे दी भी सुना दा ते अपनी भी करां दा। नंबर 9 है 68 है। और इसमें किताब का नाम क्या है? नूर इस्लाम या मनानुर रहमान? नूरुल कुरान नंबर 1 जिल्द 9 का सफा 368 कर लो। नूरुल कुरान किताब का नाम है। नूरुल कुरान और सफा बस आ गया जी, आ गया थे, आ गया जी। 2 मिनट रुक जाओ बस। ਇਹ ਬਾਜੀ ਦਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਲੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਈਏ? 68 ਸਲੀਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ शर्म आ रही कि मिर्जा साहब कहते हैं मैं सलीब में प्यार करना। जोसेफ एक मिनट, ये 368 में ये हाशिया पढ़े जरा, हाशिया पढ़े जरा, हाशिया बकिया हाशिया। बाज ईसाई पादरियों ने इससे भी बढ़कर हकीकत फहमी का जोहर दिखलाया है। वो कहते हैं कि दर हकीकत इस्लाह कुछ चीज़ ही नहीं और ना कभी किसी की इस्लाह हुई। तो रैत की तालीम इस्लाह के लिए नहीं थी बल्कि इस एमा के लिए कि गुनाहगार इंसान खुदा के अहकाम पर चल नहीं सकता, और इंजील की तालीम भी इस मुद्दा से थी, वरना तमांचे खाकर दूसरी गाल भी फेर देना ना कभी हुआ ना होगा। और कहते हैं कि क्या मसीह कोई जदीद तालीम लेकर आया था? और फिर आप ही जवाब देते हैं कि इंजील की तालीम तो पहले ही से तौरात में मौजूद थी, और बाइबल के मुतफरीक मकामात जमा करने से इंजील बन जाती है। मुतफरक मकामात जमा करने से इंजील बन जाती है। फिर मसीह क्यों आया था? इसका जवाब देते हैं कि सिर्फ खुदकुशी के लिए। मगर ताजिब के समझ गया। रुक जाओ,
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਓ। इसका जवाब देते हैं कि सिर्फ खुदकुशी के लिए, मगर ताजुब के खुदकुशी से भी मसीह ने जी चराया और एली एली लिमा सबक्तनी मुंह पर लाया। फिर ये भी ताजुब का मकाम है कि जैद की खुदकुशी से बकर को क्या हासिल होगा। अगर किसी का कोई अजीज इसके घर में बीमार हो और वो इसके गम से छुरी मार ले, तो क्या वो अजीज इस नाबेकार हरकत से अच्छा हो जाएगा। या अगर मसलन किसी के बेटे को दर्द फॉलेज है, नहीं कॉलनज ये दर्द जो है यानी कि ये पछवाड़े से खून आने को कहते हैं। पछवाड़ा जो मिर्जा साहब को भी हुआ था ये। अच्छा, दर्द कोलज है तो इसका बाप इसके गांव में अपना सर पत्थर से फोड़ ले, तो क्या उस अहमकाना हरकत से बेटा अच्छा हो जाएगा। जी ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਉਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸੇ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਦ पे ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਇੰਜ ਕੜੀ ਦੀ ਹੈ। हाँ ये कंट्राडिक्शन है वो जेड़ा भगवान साहब काट गए सन, वो कोई एडी खास गल नहीं सी। भगवान साहब इंज कड़ी दी कंट्राडिक्शन। हां जी ये कंट्राडिक्शन है, ठीक बिल्कुल सही कह रहे। नाले उन्होंने गल करके ना सारी वो खलते मुबस हो गई सी मरजाई जेड़े सन दूजे पासे ले। और मरजाई पूछो ना जेड़ी तवील कीती है ना मरजाइयां, उन्हां दसो ऐसी के कर सो हुण उसदी उल्टी करनी पैसी ने। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਆਹੋ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। दुआ कबूल ही नहीं हुई। हाँ ये भी कह रहे कि दुआ तो कबूल ही नहीं है, सारी सारी रात रोंदे रहे ते दुआ को नहीं कबूल हुई। ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ही नहीं हुई। हर गल का कंट्राडिक्शन इस इबारत में भी उन्होंने लिखा है ना, उधर कह रहे हैं कि वो खुशी खुशी घोड़े के साथ शाह सवार की तरह चढ़ गए, और इधर कह रहे हैं कि मजबूरी कर रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि जी चुरा रहे थे, उनका दिल ही नहीं था। ਉਹ ਖੋਲੋ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਨੂਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਉਹ ਆਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਖੋਲ ਲਵੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ 499 ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 368 ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਜੈਸਾ एक बहादुर सवार खुश अनान घोड़े पर चढ़ता है, सो ऐसा ही मखलूक की भलाई के लिए सलीब से प्यार, और मैं भी ऐसा ही मखलूक की भलाई के लिए सलीब से प्यार करता हूँ। ए इन्हां नूं जरा वड्डा करो, पैरेलल कर दो जी, बराबर होना चाहिए ना मुकाबला। एक मिनट में करना ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਹਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੋੜਨ ਆਏ ਆ, ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਲੀਸ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਖਲੂਕ की भलाई के लिए सलीब से प्यार करता हूं, बस ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ठीक है ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ लेपा पोती कर लेने, एक सलीब वो है, एक सलीब ये है, एक तरह से प्यार करते हैं, एक तरह से प्यार नहीं करते, जिली तौर पे करते हैं, बरूजी तौर पे नहीं करते। और भगवान साहब के काम दे जेड़े कपड़े ने ना वो मेरा हाले वो आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन। वो कैमरा असल में छोटा ना, इसलिए वो बैकग्राउंड जाहिर होता रहेगा जब तक वो फुल बड़ी स्क्रीन नहीं करेंगे। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਮਕਰ ਔਰ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ एलची बन के मलका बरतानिया तेरे दरबार कोई गल ऐसी। वो भी मैंने निकाला है कि जो आगे इनने किया था ना, वो बड़ा इसरार कर रहे थे कि हम जो है वो क्रिश्चियनिटी की कमर तोड़ने के लिए सुबह शाम काविशें कर रहे हैं। तो वो जब आप इधर वो करते हो, ये अगर स्क्रीन बड़ी करें तो इसमें तो ये कह रहे हैं कि हम गुलाम हैं,
हमें जैसे हुक्म होगा हम वैसा करेंगे। ये देखें आई ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਬਦਰ ਤੇ ਅਲ ਹਕਮ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਵਾਸਤੇ। ਪੜਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ ਅਲ ਹਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या मेरे दोनों बाजू ने तो दोनों बाजू कहते कसरे शरीफ के लिए मैगजीन का काम कर रहे हैं और अंदरूनी सलाह के लिए आपका ये कौमी खादम अल हकम 9 साल से हत्तर मकदूर सही है। खुदा का शुक्र है 3 साल से इसका एक और बाजू बदर भी पैदा हो गया है। कसरे शरीफ के लिए मैगजीन के मावरीन का पैदा होना जो अल्लाह ताला के फजल पर मकूफ है। अभी ये जो ओथ लेते हैं ड्यूरिंग इधर की सिटीजन के लिए जो ओथ लिया गया है उसमें तो क्लियर लिखा है कि ये गुलाम है और ये जो है गुलामी करेंगे क्वीन की और उसकी जा औलाद की भी। और अच्छा वो तो मिर्जा साहब ने भी लिखा है कि पादरियां ने जो तमाचे खाने सन ओदी जगह मिर्जा साहब खलोगे ते पादरियां दी जगह मिर्जा साहब चपेड़ा खांदे रहे ने ते मिर्जा साहब ने भी लिखा है ना पादरियां दी जगह असल विच मिर्जा साहब चपेड़ा खांदे रहे ने। सल्तनत बरतानिया दी सादा हुक्म ही तस्लीब होई कोई नहीं कसरे सलीब होई कोई नहीं ते 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਲ ਹਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कसरे सलीब होई कोई नहीं कहते अब मसीहों ने अपने मजहब की इशाअत के लिए एक नया तरीक इख्तियार किया कि सड़कों पर दायरा और तकिया बनाते हैं ताकि वहाँ आने जाने वालों को तबलीग करें। मिर्जा साहब तुसी ते कसरे सलीब करना है ऐसी ते ईसाई ते सड़कों ते खलो गए ने तबलीग करने वास्ते। सोचो वो किस कदर कोशिश करके काम कर रहे हैं मगर मुसलमानों की हालत इससे बिल्कुल जुदा है। इन्हें खबर भी नहीं है अपने मुंह से तमाचा मारन लगे 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ हकीम नूरुद्दीन अपने मुंह से तमाचा मार रहे ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਐ ਸਲੀਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ इस सलीब से मिर्जा साहब ने प्यार किया। मैंने कहा था ना कि मिर्जा साहब की किताब के अंदर तस्करा के अंदर जोसेफ का नाम आया है तो वो इस सलीब से असल में प्यार करते थे। रिकॉर्डिंग करके अपलोड करो ओए सलीब जे जिहदे नाल तुहाडे मिर्जा साहब प्यार कीता है इस सलीब से असल में मिर्जा साहब ने प्यार किया ते लोकां नूं धोखा दित्ते आ भी असीं कसरे सलीब मैं पे करना वा। वाह भाई वाह एनू आंदे ने